السلام علیکم میرے پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ناول یا سٹوری پسند آ رہی ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو کس طرح کے ناول یا کہانیاں پسند ہیں تاکہ میں آپ کی رائے کے مطابق ناول اور کہانیاں لے کر آؤں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ہیلو، حور نے خود ہی اپنا ہاتھ ایمل کی سمت بڑھایا، جس پر ایمل نے ویسے ہی ہنوس اکھڑے تاثرات سے حور کا پھیلایا ہاتھ مجبوراً تھاما اور بس ہلکی سی مسکان کی رمق دیے سر کو جنبش دے کر حور کو بھی مطمئن کر دی۔ حالانکہ حمان کے سامنے وہ یوں ہی اکڑی رہتی تھی، خاموش وہ ضرور تھی، البتہ جھکنا اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ حور اپنی مسکان اور دھیان کی سمت اب شانزے کی سمت کر چکی تھی، جو خود حور کو بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ حمان نے کن اکھیوں سے ایمل کے سنجیدہ چہرے کی سمت دیکھا، جہاں خاصی اکتاہٹ درج تھی۔ چلو تم دونوں جاری رکھو، ہم بھی بس اس میڈم کی فرمائش پر آئس کریم لینے نکلے تھے۔ سی یو، حمان بہت نرمی سے ان دو سے مخاطب ہوئے بولا، جس پر حور نے بھی ویسی ہی پیاری سی مسکان کے سنگ ان دونوں کو بائے کہا اور حمان کے ساتھ ہی آئس کریم پارلر سے نکل گئی۔ البتہ شانزے اور ایمل کے تاثرات اب واقعی اٹھ چکے تھے، تو اس کا مطلب کہ حمان کا واقعی جلال سر سے بہت گہرا تعلق تھا، تبھی تو یہ گینڈا اتنی جلدی پروفیسر بن کر آ گیا۔ اور علی بھیا کتنے میسنے ہیں، اب مجھے یقین ہوا، یعنی اس چھچھندر کی بہن جو ہے وہ سر جلال کے بڑے بیٹے کی وائف ہے۔ ایمل کو سارے گھماؤ کا اب اچھے سے علم ہو چکا تھا۔ خود شانزے ان سب کے الجھے رشتوں پر سوچ میں ڈوبی لگی۔ واہ واہ، ہم نے تو حمان سر کی بیٹی بنا رکھی تھی، اس کا مطلب ان کی اولاد نہیں ہے، پر وہ قبر۔ شانزے کی اس تحقیق زدہ بات پر ایمل کا ماتھا بھی تھنکا۔ اب وہ البا کی سچائی جاننے کے لیے پہلے سے زیادہ پرجوش اور متحرک لگی۔ دونوں جاسوسن نازک کام میں گھس چکی تھی، اللہ ہی اب خیر کرنے والا تھا۔ رات کے ڈنر پر سب ہی فریش ہو کر آ چکے تھے۔ ہانیہ، ریحان اور بچوں کے آ جانے سے واقعی ہر طرف رونق ہو گئی تھی۔ بھائی، اب جیسا کہ تم لوگ آ گئے ہو تو باقاعدہ طور پر علی اور شانزے کے رشتے کی بات کرنے کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ ویسے تو میں نے فیصل اور اکمل دونوں سے بات کی ہے اور ان کو کوئی اعتراض نہیں، مگر شانزے کی مرضی اہم ہے۔ کیا خیال ہے تم سب کا اس بارے میں؟ رات کے کھانے پر جلال صاحب نے آخر کار عالیان کے دل کا کہا۔ سب تک ارسال کرتے ہی 7 رائے بھی دریافت کی۔ حمان اور حور تو آپس کی باتیں روک کر ہمتن گوش ہو چکے تھے، البتہ ریحان، ہانیہ اور علیم بابا کے چہرے پر ایک سی رضامندی درج تھی۔ رہی بات عالیان کی، اسے تو تبسم خیز خوشی چھپانے میں اب محنت کرنی پڑ رہی تھی، دوسرے الفاظ میں لڈو پھوٹ پڑے تھے دل کے کونے کونے میں۔ جی بابا بالکل، ہم سب ویسے بھی اس بار اسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ علی کے ساتھ ساتھ اب حمان کی بھی شادی ہو جانی چاہیے تاکہ دونوں گھر آباد ہو جائیں۔ ویسے بھی ہانیہ نے آلریڈی ہمی کے لیے بھی لڑکی دیکھ رکھی ہے۔ اگر یہ بات غلطی سے یہاں کھل جاتی کہ ہانیہ نے حمان کے لیے ایمل کو پسند کیا ہے تو یقیناً اس وقت ببال مچ سکتا تھا، اور حمان اس بات پر سنجیدہ سا تاثر دے کر اپنی لی دی سی توجہ کا برملا اظہار کر گیا۔ علی کے لیے ایک سرپرائزنگ نیوز تھی، تبھی محترم کے دانت نمائش کو باہر گرے دکھائی دیے۔ واہ ہانیہ آپی، آپ تو چھا گئی ہیں، تو بس پھر بسم اللہ کرو ظالمو، میں تو کہتا ہوں میری کل ہی کرا دو۔ عالیان کا چنچال پن متوقع تھا، تبھی سب اس کی بات پر ہنس دیے۔ البتہ حور اب شانزے سے ہوئی ملاقات پر تبصرہ دینے والی دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی جب ہم آئس کریم لینے گئے تھے تو ہمیں شانزے آپی اور ان کی ایک پیاری سی مغرور سی فرینڈ ملی تھی۔ دادو، شانے آپی بہت بیسٹ ہیں، پلیز ان کو جلدی سے لے آتے ہیں، یہ نہ ہو ان کو کوئی اور لے جائے۔ نہایت فکر سے ہلکان ہوتی حور کی رائے آ گئی تھی تو سمجھو معاملہ طے تھا۔ خود علی ساتھ بیٹھی اس ماسی کو خود سے لپٹائے اپنے حق میں بولنے پر لاڈ لاڈ میں بھینچ لیا، اور وہ بھی علی کی ایسی محبت پر نہ صرف خود ہنسی بلکہ تمام اہل خانہ ایک پر لطف مسکان میں جاگزیں ہو گئے۔ ہاں ہاں لیں جی، میڈم کی سفارش آ گئی ہے، اب کچھ کرنا ہی پڑے گا، تو بابا ہم ایسا کرتے ہیں پرسوں چلتے ہیں باقاعدہ شانزے کا رشتہ لینے، پہلے یہ معاملہ طے ہو لے، پھر میں اپنا سرپرائز بریک کروں گی ہمی والا۔ ہانیہ نے بھی پرشوق چہرہ سجائے حتمی طور پر رائے دی، جس پر تمام افراد متفق لگے، البتہ حمان کے چہرے پر ضرور ایک خاموش سا سایہ لہرا رہا تھا۔ بس پھر ڈن، کل تو تم سب بہروز ولا میں ذرا آؤ تاکہ وہاں بھی تھوڑی رونقیں بحال ہوں، باقی انشاءاللہ پرسوں کا پروگرام ڈن کرتے ہیں، میں فیصل اور اکمل کو انفارم کر دوں گا۔ جلال صاحب نے بھی خوشی حمقتے انداز میں فائنل لاہ عمل طے کرتے ہوئے اپنی خوشی ظاہر کی، اور سب کے گلاب چہرے کھلتے دکھائی دیے۔ خاص خوش تو حور تھی، البتہ علی کی بھی وہ حالت تھی کہ اس کے دل وجود کے ہر انگ کا دھیان بس شانزے کی سمت جا اٹکا تھا۔ محبت پانے کی خوشی سے بڑھ کر آسان رسائی تھی جس نے اس کے چہرے کے نقوش میٹھے کر رکھے تھے، البتہ حمان کو اس بات سے کوئی فرق نہ تھا کہ اس کے لیے کسے چنا گیا ہے۔
उसे बस अब सबकी खुशी का मान रखना था। मुमकिन है ये राज राज ही रह जाता, क्योंकि वक्त से पहले इसका खुलना तबाही था। वो आज काफी दिन बाद हुप के पास आई थी। आइसक्रीम से पहले उसने शाने के साथ हल्का फुल्का डिनर भी कर लिया था। लिहाजा वो सोने के बजाय घर से मुल्हिका छोटे से अस्तबल में आ गई थी। यहाँ टोटल 3 घोड़े थे, जिनमें एक एमल का था, और वैसे तीनों की देखभाल खान बाबा ही करते थे। शानजे के अलावा एमी का जो दूसरा दोस्त था वो यही था। उसके दबेज बालों में उंगलियां फेरते एमल इस वक्त गहरी रात का एक हिस्सा मालूम हो रही थी। जानती हूँ, हफ्ते की सजा डबल कर दी मैंने, पर तुम भी कहीं ना कहीं सजावार हो। पर अब मैं तुमसे बिल्कुल खफा नहीं, और नेक्स्ट संडे हम घूमने भी जाएंगे। तुम उदास हो ना? एमी की मुलायम सी बात पे यूं लगा वो बेजुबान जानवर समझ गया। तभी अपना चेहरा झुकाए वो एमल के साथ लग गया, और वो भी मुस्कुरा दी। जब से उसने होश संभाला था, उसके बेहतरीन हमदर्दों में एक खूब भी था। वो इससे बातें करती थी। जब मामा बाबा उसे किसी गलती पर डांटते तो वो सबसे किता ताल्लुक करके यहाँ आ जाया करती थी। जब उसे घर में बात के लिए कोई मुयस्सर न आता, तब भी वो यहाँ आ जाती थी। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी वजह से गिरी भी तो कितनी बुरी थी। लेकिन तुम जानते हो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। एमल थोड़ी उदासी से अब हुप के माथे पर ढलके सुनहरी माइल बाल अपनी अंगस शहादत से हटाए सामने आसमान पर निकला चांद देखने लगी। मामा और बाबा मुझे आज तक नहीं समझ पाए। शांसे के अलावा एमी को कोई नहीं समझता है, न समझना चाहता है। पता नहीं इन सबको क्यों समझ नहीं आता कि मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। क्या मैं वाकई बहुत बदतमीज हूँ? लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ जो दब कर रहूं। मैं किसी से कम नहीं जो जी हजूरी करूं। पहले को रद्द करते, दूसरे से सर उठाते ख्यालात जंग की मानी थे। ये बेबसी के वो पहली बार अपना बदला वक्त पर ना ले पा रही थी, उसे बुझा रही थी। हमान से होने वाले सामने ने उसे मजीद उकताहट ज़दा कर दिया था। उसे बस यूनी एंड होने का इंतजार था, ताकि वो इस उलझन से खुद को निकाल सके। खूब गर्दन हिलाए एमल की बाजू से चेहरा जोड़कर उसे ये बता रहा था कि वो उसे पसंद करता है। एमी के चेहरे पर एक ताजगी अमेज तबस्सुम जागा। यू आर रॉक। तुमसे बात करके एमल हल्की हो जाती है। चलो इसी खुशी में बताओ कि हम अगली बार राइडिंग कहाँ करें? सड़क पर नहीं करनी, ओके ना? आ गई ही उसकी सजा अभी तक भुगतनी पड़ रही है। वो उस जानवर से बात करती, कभी हंसने लगती, कभी मुंह फुला लेती। एमल की जात में भी कहीं अंधेरा जरूर था। वो अंधेरा जो उसके सवेरे की राह में हायल था, और मुमकिन था उसका ये सवेरा जल्द उसको वापस मिल जाता। वो इसलिए नहीं बिगड़ी थी कि वो अकलौती और लाडली थी, बल्कि बचपन से उसे दिल की खुशी का वसीला सिर्फ शाने ही मिली। वो जब अकेली थक जाती तो अटेंशन पाने की हर वो हरकत करती जिससे उसे डांट मिले। वो डांट खाने के बाद इंतजार किया करती कि कब मम्मा और बाबा उसे मनाने आए और अपना वक्त दें, और यही चीज उसकी जात में मगरूर लाती गई। उसे यकीन था वो कुछ भी कर ले, डांट के बाद उसका मुकाम प्यार समेत वापस मिल जाएगा। वो बहुत सीधी और मुंह फट होती गई। लिहाजा मुरव्वत से कोसों दूर। आए दिन उसकी कंप्लेंट्स रफ्ता रफ्ता फैसल और मानिया को आजिज करने लगी। जिस चीज को वो एमल का बचपना समझकर इग्नोर करते रहे, वो खुद पसंदी और नखुवतपन बनकर एमल की जात का हिस्सा बनता गया। बाज औक़ात औलाद के बिगाड़ और सुधार दोनों के जिम्मेदार वालिदैन बन जाया करते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही रोनुमा हुआ था। वो जो शांजे आपी के साथ थी, हिम्मी, वो थोड़ी खड़ूस थी। वैसे वो आपको इतना हिटलर वाला क्यों देख रही थी? मुझे अच्छी तो लगी, पर ज्यादा मुझे शाने आपी लगी। बेड पर हमान के साथ उसकी बाजू पर सर रखकर अपनी मासूम सी सोच के संग वो आज की मुलाकात पर अब हमान को अपनी राय दे रही थी, जबकि हमान उसका अपने फेस पर रखा हाथ पकड़े किसी गहरी सोच में डूबा दिखाई दे रहा था। एक्चुअली बोथ आर माई स्टूडेंट। वो भी मैथ की, तो ऐसी दुश्मनी तो बनती है ना। वैसे तुम्हें बस शांजे पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आली के लिए वो एकदम परफेक्ट है। हमान उसके लाडों पर हल्का सा मुस्कुराए, अब चेहरा हूर के सिम फेरे समझाते बोला। मगर वो थोड़ी तजस्सुस में गरक अब हिम्मी को देखकर कुछ सोच भी रही थी। और आपके लिए भी मम्मा ने ढूंढ ली है वाइफी मिस्टर। अब नहीं बचने वाले आप बच्चू। इतनी मीठी कि अमृत को मात देने लगती। हूर की इस शरारती बात पर हमान अपनी हंसी भी ना रोक पाया, और जब हमान यूं मुस्कुराता तो हूर उसकी मुस्कुराहट के इनाम पर हिम्मी की गाल पर हर बार नरमी से प्यार देते साथ लिपट जाती। जब भी वो आती, उसका बिस्तर हमान के बेड पर होता था, और मोहतरमा रात टांगे और हाथ चलाने के बावजूद हिम्मी से दूर ना की जाती थी। मेरी जान, कितना मिस किया है मैंने तुम्हें। पटाखा कहीं की। हमान भी जी जान से हर उन्स लुटाए इस गुड़िया को दबोच चुका था, और वो भी अपनी हंसकर सुर्ख होती गालों से निहायत प्यार इंजॉय कर रही थी। हिम्मी, आप क्या अपनी वाइफी को भी ऐसे ही हग और किस करेंगे?
देखे मैं जेलस हो जाऊंगी। हिम्मी की हंसी रुकी ही थी कि वो इसके सीने पर बाजू टिका कर इस सहारे झुकती हुई मुंह फैलाए उदासी से बोली तो हमान उस सवाल पर कितनी ही देर हंसता चला गया। वाकई पटाखा ही थी। उसे क्यों करूंगा भाई, ये सब सिर्फ मेरी गुड़िया के लिए है। उसे हम फ्लाइंग किस पर टरखाएंगे। हमान खुद इस वक्त उसके साथ बच्चा बने नहायत प्यारा और दिल फरेब आंख मारे हंसा और वो भी शदीद दिल को ठंड पड़ती खुशी से खी खी करती रजामंद लगी। मोहतरमा आजकल की नस्ल थी तो इतना फास्ट तो होना ही था बस। यस हिम्मी यू आर सो स्वीट। आपको पता है आप इस दुनिया के बेस्ट फ्रेंड हो। हिम्मी आप इतने प्यारे क्यों हो। एक तो वो इतनी मासूम थी और ऊपर से दादी अम्मा। हमान की हल्की हल्की शेप पर हाथ मारते उसे गुदगुदी भी हो रही थी और उसके अनोखे सवाल पर हमान ने उसकी नाक दुबाए ऊपर से उठाकर नीचे किए बाजू से लगाकर लटाया। मगर मोहतरमा तो आज हुसन की वजह जानकर ही सोने वाली थी। हमान को यखलक हंसी सी आई। वो भी भीना भीना मुस्कुराती किसी नई शरारत की तर्जुमानी करती महसूस हो रही थी। हाँ हाँ सो जा मेरी दादी, मुझे सुबह यूनी भी जाना है। चलो आंखें बंद, अपने मुनफरिद हुसन का राज मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। अभी के लिए बहुत हो गई मस्ती। हमान की प्यारी सी बात पर वो मैडम भी नींद में झटके खाती एक दो मिनट तक बड़ी स्पीड से नींद में डूब गई और हिम्मी इसके यूं सो जाने पर फिर से मुस्कुराकर इस नन्ही परी की पेशानी चूमता उसका सर अपनी बाजू से हटाकर तकिए पर रखे थोड़ा उठकर बैठा और इसी लम्हे हानिया मुस्कुराती हुई आई। मैं इस मैडम को देखने आई थी, सो गई। हानिया ने एक प्यारी सी निगाह सोई हूर पर डाली और हमान के पास ही आकर बैठी जो अभी खुद भी ठीक से बैठे हूर को ही देखकर जी रहा था। अभी सोई है अफंदी हाउस की रौनक लौट आई। इस बार वाकई कुछ ज्यादा ही मिस किया इस अफलातून को। हमान के लहजे में बेहद उन्स और चाह थी जिससे वो इस खुद की कायनात जैसी हूर के माथे पर ढल के बाल हटाए बोल रहा था। और हानिया का दिल चाह रहा था कि जल्द वो हिम्मी के अपने बच्चे भी देखें। यही हाल उसका था। हिम्मी हिम्मी हिम्मी, अब इस घर की भी कोई रौनक आ जानी चाहिए। हमान मेरी जान, क्या सोचा तुमने फिर? क्या मैं तुम्हारी शादी का स्टेप उठाऊं? भले हानिया जानती थी कि हिम्मी उसकी बात नहीं टालता, मगर अब वो एक बार फेस टू फेस भी हिम्मी से बात करना मुनासिब समझती थी। और हानिया की इस बात पर हमान के चेहरे के रंग संजीदगी में जागजी हो गए। आपी, अगर आपकी खुशी मेरे घर बसाने में है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं राजी हूँ। सही कहती हैं आप, इस घर की रौनक अहम है। मेरा बस चलता तो आप सबको यहाँ रोक लेता, हूर को पास रख लेता। सच पूछें तो मुझे कोई कमी नहीं, लेकिन मैं आपकी खुशी का एहतराम भी चाहता हूँ। हमान की सीधी सादी इस बात में बस इकमान और एहतराम था और हानिया को अपने भाई पर आज भी रश्क था। हानिया का दिल हल्का हो चुका था। हमान कहीं दिल से मुतजब्जब हो रहा था। जिस रिश्ते को अमान सौंपी हो उसे मताए जान बनाना उसके लिए कठिन था। थैंक यू हमान, इंशाल्लाह बहुत जल्द इस घर में खुशियां लौटेंगी। तुम मेरे लिए मेरी हूर जैसे हो हिम्मी, और एक माँ अपने बच्चों को बसा देखना चाहती है। चलो इसको मैं ले जाती हूँ, वरना रात तुम्हें जबरजदा रेसलिंग सहनी पड़ेगी। इसे तो डर के बायस बाबा भी पास नहीं सुलाते, कहते हैं मेरी पसलियां क्रैक कर देगी। जहाँ बातों का आगाज हल्की फुल्की उदासी रमक से हुआ वहीं इख्तिताम तक हिम्मी और हानिया शदीद हंसती है। हाँ हाँ नहीं आपी, इसे रहने दें। मैं इसे कंट्रोल करना जानता हूँ। सुबह अगर इसने मुझे ना पाया आसपास तो मुझे गरीब को फिर से 10-20 आइसक्रीम खिलानी पड़ेंगी नाराजगी हटाने को। हमान बात कहते खुद ही शरीर हुआ और हानिया भी मुस्कुराती हुई अपनी आफत पर निगाह डाले उठ खड़ी हुई। चलो भाई, तुम अगर लाते वगैरह खाने में इतने विलिंग हो तो भुगतो इसे। हाँ हाँ हम तो चले। आय हाय, हानिया भी शरारती थी। और इस बात पर हमान भी मुस्कुराता हुआ उठकर दरवाजे तक आया और हानिया के जाने के बाद मोहतरम एक नजर अपनी प्रिंसेस पर डालने के बाद खुद भी बेड तक आए और वहीं दोबारा लेटकर हूर पर अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़े लैंप ऑफ किए खुद भी सोने लेट गया। सुबह जब हमान यूनी के लिए निकला तो हूर सो रही थी और हमान ने खुद ही उसे जगाना मुनासिब ना समझा। जलाल अली तो रात ही घर चले गए थे। अलबत्ता हानिया और रेहान रात यहीं रुके थे और आज हस्बे वादा सब जलाल साहब के विला में जमा होने वाले थे। जाते हुए हानिया ने उसे वापसी पर वहीं आने का कहा था। क्लास में आकर हमान ने पहली ही नजर एमल को देखा जो उसे पिछले 2 हफ्तों से देखना तक छोड़ चुकी थी। हमान अपनी ड्यूटी अव्वल दिन की तरह ईमानदारी से निभाता हुआ लेक्चर में बिजी था, मगर आज उसकी तवज्जो एमल पर पहले से ज्यादा थी। कुछ वक्त पहले जिस तरह एमी उसकी जात और जाहिरी हुलिये को एक टार्चर के तौर पर परखती थी, अब हमान उसे परख रहा था। वो जो उससे लड़ती हुई जहर लगती थी, शायद एमल की ये खामोशी और दबी दबी बरहमी हमान को बेचैन कर रही थी। फुल ब्लैक पैंट और शर्ट और आज तो टाई भी ब्लैक ओढ़े हमान का एक्स्ट्रा सुर्खी और सफेदी माइल रंग दमक रहा था। पूरी क्लास हमान की फैन थी सिवाय इस दुश्मन जैसी एमल के।
جو اسے اب شریف بنی بھی ہضم نہ ہو پا رہی تھی۔ شانزے تو ویسے بھی کلاس میں مکمل متوجہ ہو کر پڑھتی اور سیکھتی تھی، مگر ایمل پورے ٹائم بس سرسری سی توجہ دیتی پائی جاتی تھی۔ حمان تمام اسٹوڈنٹس کو کچھ کوسچن خود سالو کرنے کے لیے دے چکا تھا، جس کے بعد وہ خود ارد گرد گھوم کر تمام اسٹوڈنٹس کا جائزہ لینے لگا۔ ایمل اور شانزے بھی اپنے کام میں منہمک ہو چکی تھیں، جس پر حمان نے پھر سے ایمل کی سمت توجہ مبذول کی۔ کیا یہ واقعی سدھر گئی ہے؟ لیکن مجھے یقین نہیں آتا اس کے بھڑکتے مزاج کی یہ خاموشی کسی نئے طوفان کا اشارہ نہ ہو۔ کچھ فاصلے پر سینے پہ ہاتھ باندھ کر ایمی کو دیکھتا حمان خود سے ہی اپنا خدشہ کہہ رہا تھا۔ وہ جو اپنے دھیان میں کبھی پینسل منہ میں ڈال لیتی تو کبھی کسی الجھن میں ڈوبی شانزے کو سمجھانے لگتی، صحیح کہتا ہے عالی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ اب حمان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے سوا کسی تیسرے کو خاطر میں نہ لاتی تھیں۔ حمان اس کے نازک چہرے کی ابھرتی رگیں بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا، جو بات کرتے سمے ابھر آتی اور ان کا کھچاؤ اس کی گردن تک جہاں پہنچتا۔ وائٹ شرٹ اور مسٹرڈ جینز میں وہ اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ کر ہلکے پھلکے مصنوعی حسن کے ٹچ میں لپٹی ہو کر بھی نیچرل پیاری تھی۔ حمان نے کبھی کسی کے لیے اتنے نازک طور سے نہ سوچا ہوگا جس طرح وہ ایمل پر نگاہیں رکھے کسی تشویش میں گم تھا۔ اسے گڈ لک کہہ لینا چاہیے یا بیڈ لک کہ اتفاقاً ایمل نے گردن موڑ کر یوں ہی دیکھا تو خود پر حمان کی ایسی ظالم نظر پا کر اپنی موٹی آنکھیں مزید پھیلا کر گھوری، جس پر حمان جو نہ جانے کہاں جا پہنچا تھا فوراً اسے خود کو نارمل کرتا باقی اسٹوڈنٹس کی طرف دھیان لگا گیا۔ البتہ ایمل کا منہ ضرور سوج چکا تھا۔ چھچھندر کہیں کا! ایمی کی رازدارانہ سی خفا سرگوشی پر ساتھ بیٹھی شانزے نے ہونک بنے ایمل کا منہ دیکھا، جہاں سخت غصہ درج تھا۔ ہیں تجھے کیا ہو گیا؟ اب کیا کر دیا اس نے؟ شانزے نے مسکین سی سوال کی کوشش کیے گردن موڑ کر حمان کو دیکھا، جو اب کچھ اسٹوڈنٹ کے پاس جھکا ان کو کچھ بتا رہا تھا۔ اس گینڈے کی نیت خراب ہے، میں بتا رہی ہوں۔ تو یقین کر دیدے پھاڑ کر دیکھ رہا تھا مجھے جیسے دل ہی دل میں میرے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہو۔ کہیں میری خاموشی سے اس نے یہ تو نہیں غلط فہمی ڈال دی کہ یہ مجھ سے طاقتور ہے؟ ایمل کو بیٹھے بیٹھے نئے صدمے نے آ گھیرا اور شانزے اس انکشاف پر نیلی پیلی ہو کر رہ گئی۔ یار وہ کیوں بنائے گا ایسا منصوبہ؟ اسے پتا ہے ہم سے پنگا لینے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چل کر یار، شانزے نے اس وقت بھی مصالحت سے اچھی پازیٹیو سوچی، مگر ایمل کو یہ حمان کی خود پر تحقیق ذرا ہضم نہ ہوئی۔ تبھی اس کے بعد وہ چپ چاپ کلاس اوور ہونے کا ویٹ کرتی رہی۔ کلاس کے ختم ہوتے ہی تمام اسٹوڈنٹس کے نکل جانے کے بعد بھی ایمل منہ پر سختی سے جائے اور شکن آلود پیشانی سے حمان کے روبرو آئی۔ البتہ شانزے کو اس نے کسی جنگ نہ کرنے کا پورا یقین دلائے جانے کا اشارہ کیا۔ شانزے کے جاتے ہی حمان نے اپنے سامنے تن کر اکڑی ایمل کو دیکھا اور یوں چہرہ تناؤ زدہ کیا جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیوں رکی ہو؟ تمہیں ایک بات کلیئر کر دوں، مجھے ہلکا لینے کی کوشش مت کرنا۔ میں جو چپ ہوں صرف تمہاری گھٹیا سازش کی وجہ سے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے شانے کا فیوچر سپوائل ہو۔ لیکن تمہارے یہ چھچھندر والے کام دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا ہے۔ کیوں دیکھ رہے تھے تم مجھے؟ بولو۔ ایمل کی جواب دہی کا انداز خاصا اریٹیٹنگ تھا، جس پر حمان اسے کوئی کمزور تاثر دے کر سر پر چڑھانے کی غلطی تو قطعی طور پر نہ کر سکتا تھا۔ تبھی 2 قدم چلتا عین ایمل کے قریب ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنی جینس کی پاکٹ میں گھسائے اپنی اچڑتی نگاہ ایمل کے برہم چہرے پر ڈالی۔ مجھے تشویش تھی کہ تمہاری زہریلی زبان ناپید تو نہیں ہوگی، کہیں یہ مننے والی تو نہیں بیچاری۔ تبھی انسانیت اور درد دل کے واسطے دیکھ رہا تھا، مگر کہاں بھئی، تم تو کافی ساروں کو مار کے ہی مرو گی۔ دوسری بات کہ میری سازش ہی تم 2 کا بھلا کرے گی۔ تم جیسی لڑکی کسی نرمی کے لائق ہی نہیں ایمل۔ اتنی پست سوچ کی مالک ہو کر تم کتنے بھی آسمان چھو لو، تمہارے قدم اس زمین پر ہی رہیں گے۔ حمان نے بھی کسی سے ناحق دبنا نہیں سیکھا تھا، اور خاص کر بد اخلاق لوگوں کے لیے اس کے مزاج میں اور دل میں کوئی رعایت نہ تھی۔ حمان کا کھردرا اور مضبوط انداز ایمل کے اندر کچھ دن سے بجھی آگ پھر سے بھڑکا گیا تھا، اور وہ حقارت سے اسے دیکھتی خود حمان کو افسوس میں ڈبو گئی تھی۔ تم ہو کون مجھے جج کرنے والے؟ اپنی حد میں رہو گینڈے، یہ مت بھولنا کہ تم ایسے بھاشن دے کر مجھ سے بچ جاؤ گے۔ خود تم انتہائی گھٹیا ہو، تم چاہتے ہی نہیں کہ میں خاموش رہوں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ اگر تم میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ ہی گئے ہو تو اب یہ دشمنی ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی۔ تم مجھے دیکھو گے بھی نہیں، ورنہ تمہاری یہ آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ ایمل اپنے دشمنوں کو یہ حق بھی نہیں دیتی کہ وہ اسے دیکھ بھی سکیں۔ حمان ایک پل کو ایمل کی انتہا کی خود پسندی اور انا پرستی پر دنگ رہ گیا۔ شدید اکتاہٹ سے وہ ایمل کے جلال اور غصے کو ہوا دینے کو مسکرا دیا۔ بہت غلط پنگا لے بیٹھا تھا زخمی شیرنی سے، حقیقت میں اپنے سکون کو خود ہی غارت کرنے چل پڑا تھا۔ تمہیں دیکھ کر ویسے بھی میری بینائی کتنے لمحے سون ہو جاتی ہے۔ زہریلے نظارے ویسے بھی آنکھ کی بینائی کے لیے مضر ہیں،
اور میں کون سا تمہارے دیدار کو مرا جا رہا ہوں۔ حمان بھی مبہم سا ضدی لگا، شاید ایمل جیسی بلا سے ٹکرانے کے لیے اس جیسا مزاج خود پر تھوڑا ہی صحیح پر اوڑھنا اشد ضروری تھا۔ ایمل اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا حمان کی حد درمی اکڑی گردن پر مکہ رسید کر ڈالتی، انگارے چباتی اور آگ برساتی نگاہ ہی ڈال پائی۔ بہت برا انجام کروں گی تمہارا، یاد رکھنا۔ ایمل نہ مجبور ہے نہ کسی کی غلام، تم پچھتاؤ گے اپنے ہر لفظ پر۔ نہیں چھوڑوں گی گینڈے، چھچھندر کہیں کے، شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، چٹے باندر، مجھ سے دوبارہ ٹکر لینے کی کوشش نہ کرنا ورنہ۔ ایمل کی وہی پرانی طرز بھانپ کر حمان نے اس نئے ارسال ہوئے لقب پر سخت برا منہ بنا کر ایمل کی خونخوار شکل دیکھی اور اسے ورنہ پر سخت عتاب زدہ ہو کر گھورا، جس سے ایمل کی بولتی رک چکی تھی۔ ایسے جلے بھونے لہجے میں ایسی تہذیب سراسر نامنظور تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنے استاد کو یہ سب کہہ رہی ہو؟ چٹا باندر، یا میرے اللہ، ایسا بندر کہاں پایا جاتا؟ بولو، بتاؤ ذرا مجھے، میں بھی تو دیکھوں، کیا واقعی وہ میرے جیسا ہے؟ ایک پل کو ایمل بھونچکا سی رہ گئی، کیونکہ حمان جو بظاہر رگوں میں شرارت دوڑاتے انداز میں اسے جھاڑ رہا تھا، مگر اس کی بات تو بالکل غصے والی نہ تھی۔ ایمل کو سفید پڑتا دیکھ کر حمان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائے، گردن موڑ کر اپنی بکس اور چند نوٹس اٹھائے اور پھر پکا سا سنجیدہ منہ بنائے واپس مڑا۔ مجھے کل تم چٹے باندر کی ساری تفصیل دو گی، ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا۔ اگر وہ ذرا بھی مجھ سے مختلف ہوا تو اگلا نام رکھنے کی باری میری ہوگی، گڈ لک۔ حمان بظاہر سخت اشتعال و غصے میں کہہ کر گیا اور دروازے میں جا کر مسکرا دیا۔ البتہ ایمل ضرور حیرت و بے یقینی کے سمندر میں غوطے کھاتی رہ گئی۔ حمان نے اپنی چالاکی سے آج ایمل کی بے وقوفی بھی ادراک کر لیا تھا، اور پہلی ہی صحیح پر آج حمان کی مسکراہٹ کی وجہ یہ چڑیل اور پگلی ایمل تھی۔ ایمل تو کچھ نہ سمجھی کے انداز میں ویسے ہی باہر نکل گئی جیسے اس پر نہ جانے کون سی خطرناک ذمہ داری عائد ہو گئی ہو۔ ہاں ہاں نہ کر یار، بیچاری کو اتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ آصف جلال کی طرف جمع تھے اور باقی سب اندر خوش گپوں میں مگن تھے۔ تبھی حمان اور علی کو کچھ وقت اکیلے ملا اور حمان کی چٹے باندر والی یہ بات پر کتنی ہی دیر عالیان ہنستا چلا گیا، اور یہ قدرتی تھا کہ حمان خود مسکراتا ہوا کافی ہلکے پھلکے موڈ میں تھا۔ وہ کہاں سے بیچاری ہو گئی؟ نام اس نے میرے رکھے ہیں، بیچارہ تو میں ہوں۔ یار کہاں پھنسا دیا تو نے مجھے۔ پہلی بار حمان اپنے معیار سے نیچے اتر کر کسی کو اس کی زبان میں سمجھانے پر مجبور ہوا تھا۔ اپنے اندر احساس ندامت سا پھر سے سلگ کر حمان کو برا محسوس کروا رہا تھا، جس پر علی نے کنکھیوں سے حمان کے چہرے کا تناؤ دیکھ کر ہنسی ضبط کی۔ وہ حمان کی معصومیت پر ابھی تو انجوائے کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ایمل والا بم بہت جلد حمان پر پھوٹنے والا تھا، اس کا علی کو صبح ہی علم ہو چکا تھا۔ یار اچھا ہے نا، اسی بہانے تو بھی مسکرا لیتا ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، وہ دل کی بری نہیں ہے۔ علی نے یہ بات محض حمان کا ناقابل یقین تاثر دیکھنے کو کہی، مگر حمان تھوڑا حیرت زدہ ہو کر علی کو دیکھنے لگا، جو اسے اس بات پر اگر ممکن ہوتا تو جائیداد سے آگ کر دیتا۔ زبان کی بری ترین ہے، دل کا کیا کریں؟ دیکھنے والے تو زبان سے جج کرتے ہیں۔ حمان کی بھی فوری حاضر جواب سی منطق پر علی قائل سی مسکان دیے اس کے کندھے پر تھپک لگائے روبرو ہوا۔ لوگ کرتے ہیں زبان سے جج، کوئی ایسا بھی تو ہوگا جو اسے دل سے جج کرے گا۔ جیسی بھی ہے وہ اپنے ان کو بور تو ہرگز نہ ہونے دے گی۔ علی بڑا میسنا تھا اور وہ یہ ساری بات جان بوجھ کر حمان سے کر رہا تھا تاکہ کوئی تو ہمسایوں سے سگنل ملے، مگر حمان کے چہرے پر اکتاہٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے بیچارے ان کی زندگی ہی جب نہ رہے گی تو بوریت کیسی؟ حمان کا انداز استہزائیہ ہوا۔ علی کی بھی ہنسی چھوٹی۔ ہاں ہاں چلو ہم دعا کرتے ہیں اس مظلوم، میرا مطلب معصوم اور جی دار بندے کے لیے جو ایمی کا مقدر بن کر پاگل ہونے والا ہے۔ علی کی شرارتی رگ آج اس لیے بھی بھڑک رہی تھی کیونکہ کل اس کی تو مراد کو لے کر پہلی کامیاب پیش قدمی طے ہو چکی تھی۔ تبھی ابھی جناب کی توپوں کا رخ حمان بیچارے کی سمت تھا، جو پہلے ہی ایمل سے سخت عاجز تھا۔ یہ سب حمان کو پھنسانے کے چکر میں ایک پرچم کے سائے تلے ایک ہو گئے تھے، خدا خیر کرے۔ دوسری طرف ایمل رات سونے سے پہلے نیٹ کھول کر، واقعی وائٹ منکی کھول کر اسے زوم کیے بیٹھی تھی۔ ہر نظارہ چاہ رہا تھا اس ڈان کی بچی کو 21 توپوں کی سلامی پیش کرے، تو گویا یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اصل سواسیر ایمل نہیں بلکہ حمان ثابت ہوا تھا۔ آج تم یونی نہیں جاؤ گی شان سے، اور ہو سکے تو ایمی کو بھی بلا لو تمہارے ساتھ رہے۔ آج کچھ لوگ تمہارے رشتے کے لیے آ رہے ہیں اور میں ان کو پہلے ہی سرسری ہاں کہہ چکا ہوں، لہٰذا آج صرف وہ لوگ رسم نبھانے آ رہے ہیں۔ کچھ دیر تک مانیہ بھابھی اور فیصل بھائی بھی آ جائیں گے۔ شانزے جو یونی کے لیے بالکل ریڈی تھی، اس انکشاف پر تہس نہس چہرہ لیے ناشتے کی میز پر بیٹھے ملازم سے چائے لیتے اکمل صاحب کو یوں دیکھنے لگی جیسے اس کی سماعت نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ واٹ بابا، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بنا مجھ سے پوچھے، بنا مجھے بتائے آپ نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے لیا؟
शानजे को तो दर्दनाक दुख ने घेर लिया। इस नाकाबिले बर्दाश्त झटके पर वो कांप कर रह गई। उसके लहजे में टूटे कांच की सी झंकार वाक़ई हुई और अकमल उस लड़की का कुछ ऐसा ही तासुर उम्मीद कर रहे थे। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा वालिद हूँ और बहैसियत सरपरस्त मुझे ये हक हासिल है। जैसे तुम्हारी और एमल की हरकतें हैं, उस पर रहा जाए तो सारी जिंदगी तुम दोनों को कोई माई का लाल बेहाने ना आए। मैं इस कदर अच्छा रिश्ता हरगिज गंवाना नहीं चाहता। पहले ही मेरी बेजा आजादी और लाड ने तुम्हारा नुकसान कर दिया है और कल को मुझे तुम्हें लेकर तुम्हारी माँ के सामने भी जवाबदेह होना है। मैं अपनी जिंदगी में ही ये फर्ज निभाना चाहता हूँ, लिहाजा तुम इनकार करने का सोचना भी मत। बाबा की खशूनत भरी निगाहों और दिल को जख्म देते लफ्जों की तपिश ने शानजे की चलती कायनात रोक दी थी। इस सितम पर उसके रुखसारों पर पुरहिद्दत नमी फैलती गई, मगर बाबा बोलने की कोशिश में होंठ कपकपा उठे। अकमल ने अब अपनी नजर की सख्ती कम किए उठकर अपने और शानजे के बीच का फासला कम किया और उसका गम से चूर झुका चेहरा पकड़कर उठाए उदास हुए। देखो शानजे, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए बेहतरीन करने की ख्वाहिश रखते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम जिंदगी के किसी मोड़ पर पछताओ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम किसी को पसंद नहीं करती, ऐसा ही है ना? अकमल जितने भी सख्त मिजाज क्यों ना हो जाते, शानजे उनकी इकलौती औलाद थी और उन्हें बेहद अजीज थी। बाबा के इस सवाल पर शाने ने अपनी भराई आंखें उठाकर नफी में एक सिसकी सी सरगोशी की, जिसके बाद तवक्को के बरअक्स बाबा ने उसे खुद में समो लिया। कई आंसू शानजे ने चुपचाप जब्त किए और जब तक वो उसे रूबरू लाए वो सुर्ख पड़ चुकी थी। तो फिर तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी तालीम की फिक्र है तो ये टेंशन छोड़ दो, क्योंकि तुम एक अदबी पढ़े लिखे घर जाओगी। मिस्टर जलाल बहरोज जो तुम्हारे प्रिंसिपल हैं, वो अपने छोटे बेटे आलियान के लिए तुम्हारा प्रपोजल बकायदा लाने वाले हैं। ही इज गुड मैन। आई होप कि तुम अपने बाबा का मान नहीं तोड़ोगी। एक और नाकाबिले यकीन इंकशाफ पर शानजे को लगा इर्द गिर्द साई साई होने लगी है। कितनी देर वो होंक बनी बाबा के कहे लफ्ज टटोलती रही। बाबा, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी, प्लीज प्लीज बाबा। शानजे की उतनी निंढाल सूरत देखकर अकमल ने शफकत से अपनी हथेली शानजे की गाल से जोड़े तसल्ली अमेज तौर से सर हिलाया, जो शानजे की वाकई तसल्ली बढ़ा गया। ये अलग बात थी कि उसे आलियान पर शदीद गुस्सा था और वो इस गुस्से को उतार कर ही दम लेने वाली थी। शादी के बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी वो लोग रिश्ता पक्का करने आ रहे हैं। मैं भले कह नहीं पाता, लेकिन शानजे, मेरी जिंदगी की वाहिद वजह तुम हो। एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी दुनिया में नहीं होती कि उसकी बेटी को बेशुमार राहत मिले। अब तुम नाश्ता करके एमल को बुलवा लो और बुआ के साथ मिलकर तैयारी करवाओ। बाकी शॉपिंग वगैरह मानिया भाभी कर लेंगी। मैं भी आज जल्दी आ जाऊंगा। शानजे को वर्ताए हैरत में डुबोकर खुद अकमल कहकर रेस्टोरेंट के लिए रवाना हो गए। अलबत्ता शानजे ने सख्त इश्तियाल अंगेजी से झुरझुरी ली और कमरे में जाते ही एमल का नंबर मिला दिया। जितना बड़ा शौक आज शानजे को लगा, उससे बड़ा धचका यकीनन एमल के लिए था। ओ यार, ये आली भैया तो वाकई बड़े मीसने निकले। मेरी शाने पर नजर डालकर बैठे थे। एमल का तो सुनकर सदमे से मुंह खुल गया। अलबत्ता जिस्म में चूंटियां तो शाने के लोट खसूट कर रही थी। एक बार ये छछोरा मुझे मिले, देखना कैसी टिंड करती हूँ। मतलब हद ही हो गई। जब दोस्ती में दाल न गली तो सीधा सीधा रिश्ता ही भेज दिया। एमी, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, जल्दी आ जा। शानजे को तो समझ ना आई कि गुस्सा करें या जाकर आली की शामत ले आए। हाँ, एमल के दांत जरूर निकल चुके थे। ओके ओके, मैं अभी आई। यार, डरने की कौन सी बात है, मैं तो कहती हूँ नेक काम में देर कैसी। ऐसा जोरू का गुलाम तुझे कहाँ से मिलेगा? तेरी तो मौज है मौज। आई मैं। एमल भी शानजे को संजीदा ना ले रही थी और शानजे को एमल की कटती काल देखकर गश आ रहे थे। हाथ पांव भी अब फूल रहे थे। बेचारा आली ना जाने अब पिटने वाला था या मैदान मारने का सेहरा इस सिकंदर की किस्मत में दर्ज हो चुका था। इन सब का प्लान शाम 5 बजे का था, क्योंकि जलाल और हमान को यूं ही जाना था। अलबत्ता आली खुद अपने क्लब मिस ना कर सकता था। आज सबने अकमल साहिब के घर जमा होना था। वैसे तो वो लोग रिश्ता ही लेने जाने वाले थे, मगर आली की पुरजोर ख्वाहिश पर हानिया ने 2 अदर रिंग्स का भी बंदोबस्त कर लिया था। अगर आज हाँ हो जाती तो दोनों की एंगेजमेंट तय हो जानी थी। मानिया और फैसल भी बर वक्त शाम की कुछ जरूरी शॉपिंग का फरीजा निभाए पहुंच चुके थे। अलबत्ता एमल सुबह से ही शानजे के साथ ही हौसला देने और हंसने में साथ साथ थी। शानजे का मुंह पूरा दिन ही सूजा और मूड बिगड़ा रहा। मेहनाज बुआ और मानिया ने मिलकर रात का शाही डिनर भी तैयार करवा दिया था। अलबत्ता फैसल ने भी अकमल की रही सही फिक्रें हटाने को आली की साली तफसील फरहाम की। दूसरी सिमत हानिया, रेहान, जलाल, हमान और हूर पांचों ही इस नेक फरीजे को सर अंजाम देने वाले थे। चूंकि जलाल खुद थोड़े मॉडर्न थे, लिहाजा उन्होंने आली के उमड़ते जज्बात देखते हुए
उसे भी ले चलने की नुई सुनाकर आली का दिन बना दिया था। मानिया ने खुद ही शानजे के लिए जीन्स शर्ट्स को छोड़कर शाम के लिए डिजाइनर ड्रेस लिया था, जिसे देखकर शानजे और एमी दोनों ने नाक चढ़ा लिया, मगर मानिया ने आसक्ति से ऐसा पहनने का ही हुक्म दिया था। गाजरी और डल ग्रीन बहुत प्यारा सा ड्रेस, जिसके दुपट्टे में फुल जालीदार फैब्रिक लगा था। शानजे पहनकर बाहर निकली तो सामने व्हाइट एंड ब्लू शर्ट और जीन्स में अपने अजली हुलिये में पेवस्त एमल तो सदकेवारी चली गई। पहली बार वो शानजे को मशरकी लिबास में देखकर खुद भी दंग थी। अरे अरे, काला टीका कहाँ है? मेरी फुलझड़ी तुझे नजर ना लगे। वैसे मम्मा का टेस्ट इतना भी बुरा नहीं। शानजे तो ऐसी शक्ल बनाए हुई थी जैसे किसी ने उस पर तोप चला दी हो, और एमल की बतीसी ही अंदर ना रह पा रही थी। शदीद आफत बने वो शानजे से बकायदा चिमट ही गई। शानजे ने भी बौखलाए हुए खुद को आईने में देखा और देखती रह गई। एमल खुद निसार होती निगाहों से शानजे को दबोचे उसके कंधे से ठोड़ी टिकाए तबस्सुम खेज अंदाज से उसे देखने लगी। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने मुंह खोलकर ना कर देनी है। शानजे के इस कदर सुलझे रूप पर ऐसी सड़ी बात सुनकर एमल ने भी मुस्कान दबाई। हा हा, लग भी यही रहा है। यार बेचारे का दिल टूट जाएगा। वैसे देखना, है भी हैंडसम वो। अच्छा भला नाम भी है उनका, अमीर कबीर खाते पीते लोग भी हैं, और सबसे बढ़कर आली भैया तुझ पर लट्टू लगते हैं। इतना सब एक साथ दोबारा मिलना नामुमकिन है। तो भाई मेरा यानी एमल फैसल लुगारी का मशवरा है कि बकरे को दबोच ले, जाने ना दे। एमल जैसी सर फिरीसी इस वक्त ऐसी समझदार बात का बरामद होना बिल्कुल वैसे था जैसे अमरूद के दरख्त से बंदा आम की आस लगा ले। शाने ने भी फटी फटी आंखों से रुख फेर कर एमल की ये बात हजम की, जो मुसलसल फर्जी कॉलर झाड़ती नजाकत से चहक रही थी। मगर एमी, वो बंदा बहुत फ्री टाइप का लगता है मुझे। ऊपर से मेरे बाबा तो अभी से उसके गुण गा रहे हैं। होगा हैंडसम भी और अच्छा भी, पर शानजे का सदमा तो वहीं का वहीं था। एमल ने इस शकूको शुबहात के पताल में हिचकोले खाती शानजे को बहूर सीने पर हाथ बांधकर देखा, और अगले ही पल शदीद हंसती। शानजे का दिल यही किया अब उसका गला दबा दे। ओ माय गॉड, एमी की जिगरी गोशी होके तेरा टिड्डे जैसा दिल। मैं मर गई। ओ हेलो मिस नाजो अदा, पहली बात है कि तू इसे इतनी आसानी से लिफ्ट नहीं करवाने वाली। दूसरा, डरेगा वो तुझसे ना कि तू उससे। तीसरा, लट्टू वो है, तू नहीं। चल चल शेरनी बन। हा हा, वैसे कसम से मेरे दिल के अंदरूनी गोशे का अरमान तुझे दुल्हन बनता देखना था। एमल की ठोक कर दी तसल्ली पर शानजे को भी लगा जैसे स्ट्रिंग पीने वाली एनर्जी आ गई हो, मगर आखिरी बात पर शानजे उसका वाकई गला दबाने दौड़ी, मगर एमल हंसती हुई उसकी पहुंच से दूर निकलते ही उस शाने को भी हंसा ले गई। जब तक एमल मानिया के कहने पर शानजे को बाहर लाई, तब तक तमाम बड़ों ने सारे मामलात ही तय कर लिए थे। दुपट्टा शानजे ने एक तरफ कंधे पर फैला रखा था, और उसे आता देखते ही हानिया बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़े पास बिठा चुकी थी, और एमल की नजर तो हमान पर जाते ही सख्त हुई। हूरिया और फादी भी आज खूब मजे में थे। आली साहेब आज भी फुल ब्लैक में लिशकते हुए कन अखियों से अपने सामने बुर्जुमान अपनी मताए जान को देखकर भीना भीना सा मुस्कुरा रहा था। हानिया की निसार होती हुई नजरें अब उस बाबा जान के साथ सोफे के हैंडल पर बैठी एमल पे गईं, तो मजीद मुस्कुरा दी। अलबत्ता एमल तो इन सबको आज पहली बार ही देख रही थी। उसे ये पता था आली का एक बड़ा भाई भी है, मगर आज पहली बार ही वो उन्हें और उनकी वाइफ और दो बच्चों को देख रही थी। ये सब तो एक तरह एक फैमिली थी जिसका अदराक सबको था, सिवाय हमान और एमल के। हमान भी आज काफी फ्रेश सी लाइट ग्रीनिश ग्रे शेड देती शर्ट और व्हाइट पैंट पहने आगे से मुख्तलिफ लग रहा था। रहा सहा उसकी खुश रिहाई का ताल्लुक उसकी सबसे मुनफरिद भूरी लुक से था, जो उसे इस फैमिली से भी यकसर मुख्तलिफ बनाती। हाँ, हूर नामी वो बच्ची एमल के मुशाहिदे में भी हमान पर थी। वो यही सोच रही थी कि जरूर हमान अपने अब्बा या अम्मा पर होगा, क्योंकि हानिया की शबाहत हमान से काफी अलग थी, और एमल उस सारे वक्त के दौरान बस उनकी शक्लों पर ही गौर फिक्र करती रही। दरअसल हम मंगनी की छोटी सी रस्म करना चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले माह की 10 तारीख ये शादी का नेक फरीजा सर अंजाम देना कैसा रहेगा? शानजे को तो जलाल सर की ऐसी बात सुनकर करंट लगा। अलबत्ता इस कदर जल्दी शादी पर एमल भी हिल चुकी थी। इतनी जल्दी? अकमल साहब को भी ये थोड़ा जल्दी लगा, तभी वो पूछे बगैर न रह सके। सभी अब उन दो की सिमत मुतवज्जो थे। हाँ जी, दरअसल अगले महीने की 15 तक रेहान यहाँ है, तो हम सबका इरादा है कि हमान और आली की शादी उसी दौरान कर दी जाए। हमान वाला मामला इंशाल्लाह हम कुछ दिन तक फाइनल करेंगे। जलाल साहब ने मुसालियत से अपनी बात कही, और एमल ने यह हमान वाली बात पर दानिस्ता नजर घुमाकर सामने हूर के साथ बैठे हमान को देखा। हमान की शादी का इल्म सबको ही था, सिवाय खुद दुल्हा दुल्हन के, और यूं भी लगा कि जलाल के इस जिक्र पर हानिया ने मुस्कुराकर मानिया की सिमत कोई इशारा सा किया, जो खुशकिस्मती से हमान और एमल की नजरों से चूक चुका था।
ورنہ ایمل کی جاسوس نظریں ضرور بھانپ جاتی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ شانزے جو پہلے رشتے کے بہانے منگنی سے ڈائریکٹ شادی تک گھسیٹی جانے والی تھی، سخت متذبذب سے سامنے بیٹھی پرسکون بیٹھے عالیان کو گھوری۔ جی بالکل، ویسے بھی نیک کام میں کیسی دیر، 5 دن اسی مہینے کے بھی ہیں اور 10 اگلے، تیاریاں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ہانیہ نے بھی بھرپور خوشی سے اپنی رائے دی اکمل انکل کو قائل کر لیا۔ تبھی وہ شانزے کی سم دیکھ رہے تھے جو اداسی بابا کو نا کا اشارہ دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بسم اللہ کریں۔ بابا کی یوں ماتھے پر آنکھیں رکھ لینا شانزے کو مزید دکھ دے گیا تھا، اور ایمل بھی اب سنجیدہ سی اس منگنی کے فنکشن کو دیکھ کر کسی سوچ میں ڈوبی لگی۔ آلیان کو اب شانزے کے ساتھ بٹھایا گیا تھا اور یوں دونوں رنگز ہی لڑکے کی طرف سے ڈال دی گئیں۔ شانزے تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا ہی نہیں رہی تھی، مگر آج عالی صاحب کا دن تھا، لہٰذا بہت نرمی سے وہ اس کا مسلسل کھینچتا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی میں اپنی محبت کی پہلی نشانی ڈالنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر چاروں نہ چار شانزے کو بھی یہ مشکل اور ناپسند فریضہ سر انجام دینا پڑا۔ ہانیہ نے اس خوشی پر سب کا باری باری منہ میٹھا کروایا اور سب نے مل کر دونوں بچوں کی دائمی ساتھ کی دعائیں کی۔ ایمل کی نظریں گھوم پھر کر پھر سے حمان پر جا رکی، جو سرسری سا اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ جو خبر حمان کی شادی والی ملی تھی، اس نے ایمل کی صبح والی شرارت اور ایکسائٹمنٹ کہیں اندر سے کم کی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ آلیان صاحب نے تو اپنا بم پھوڑ دیا تھا، اب نہ جانے دوسرے کپل کو سارا ٹبر کیسے ہینڈل کرنے والا تھا۔ کھانے کا انتظام واقعی شاہی تھا، یہ الگ بات تھی کہ کچھ کی بھوک بالکل مر سی گئی، جن میں سیر فہرست شانیں تھی۔ دوسری طرف ایمل تو ابھی البا والی تحقیق نہیں کر پائی تھی، اوپر سے نئی شادی کا قصہ کھل گیا تھا۔ حمان کسی کال کو سننے باہر لان میں گیا تو ایمل بھی موقع ملتے ہی باہر آ لپکی۔ لان میں ادھر ادھر نظر دوڑانے کے لیے وہ پرسرار سی یہاں وہاں دیکھ کر آگے بڑھ رہی تھی، تبھی آگے سے یخلت آتے حمان سے بری طرح ٹکرائی۔ وہ بھی اس اچانک سینے سے آ کر گولی کی طرح بجتی اس نازل شدہ آفت کو بمشکل گرنے سے بچائے آرام سے پکڑ کر روبرو کیے دیکھنے لگا، جو اپنا ماتھا مسلے اپنے کندھے چھڑواتی آزاردگی آنکھوں میں بھرے گھوری۔ آنکھیں کھول بھی لیا کرو، حمان نے خاصی استہزائیہ ہو کر نصیحت کی، جس پر ایمل نے بیچ کا فاصلہ بنائے ناک چڑھائی۔ اندھے تم ہو، میں نہیں، خود تو پتھر کا بلاک ہو، میرا سر گھما دیا اور الٹا چور کوتوال کو آنکھیں دکھا رہا ہے، یہی چیز تم میں نہایت بری ہے گینڈے۔ ایمل سے اس وقت وہ بات کے رتی برابر موڈ میں نہ تھا، آج وہ علی کے لیے بہت اور نہیں چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے مغز کی لسی کر کے اسے غصہ دلائے۔ تبھی حمان بنا اسے جواب دیے مڑا، مگر ایمل نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا، جو حمان کے لیے ابھی تک کا سب سے بڑا دھچکا تھا۔ کیا ہے؟ حمان نے ایک سرد مہر سی نگاہ اپنے بازو کو پکڑے ایمل کے ہاتھ پر ڈالی اور برہم ہو کر اس سے استفسار کیا۔ ایمل نے فوراً سے پہلے اس کی بازو چھوڑ کر خود کو نارمل کیا۔ کچھ نہیں، بس مجھے اس بیچاری کے لیے بہت دکھ ہے جو تمہارے جیسے عذاب کا شکار ہونے والی ہے، سچی میری ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں۔ بائی دا وے، اس کو کب تک قبر میں پہنچا دو گے یہ تو بتا دو، البا کی طرح۔ ایمل کی جیسے ہی تھوڑی عزت حمان کے دل میں قائم ہونے لگتی تھی، یہ لڑکی اس کو یہ باور کروا دیتی تھی کہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ ایمل نے یہ بات خاصی مضحکہ خیزی سے پوچھی، مگر حمان کے چہرے پر لکھی افسوس کی داستان وہ بھی محسوس کر چکی تھی۔ میرے ہر معاملے سے دور رہو ایمل، یہ نہ ہو کسی دن میرے ہاتھوں تمہارا ہی کوئی ناقابل تلافی نقصان ہو جائے۔ تم تو اس لائق بھی نہیں کہ تم سے 2 گھڑی بات کی جائے، نہایت بد اخلاق اور بے حس ہو تم۔ حمان آج خفا سے زیادہ اس لڑکی کی محدود اور آزار دیتی سوچ پر کرب زدہ تھا، اور ایمل خود اپنی جگہ جم کر رہ گئی تھی۔ یہ سب تم ہو گینڈے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، تم ہو ہی جلاد۔ ایک کو قبر پہنچا کر اب دوسری کی کتنی آسان تیاری کر رہے ہو۔ بیچاری البا جو بھی تھی نہایت بدقسمت تھی کہ اس کے نام کے ساتھ حمان افندی جیسے برے انسان کا نام جڑا ہے۔ ایمل اپنی دشمنی میں اب حمان کی دل آزاری پر اتر آئی تھی، جس کا اسے ذرا احساس نہ تھا۔ حمان نے بمشکل اپنے آپ کو کسی سخت بات سے روکتے ہوئے ناپسندیدگی سے چہرہ موڑ لیا، مگر ایمل اتنی آسانی سے بھاگنے نہیں دینے والی تھی۔ حمان کی آنکھوں میں اس وقت خون سا اتر چکا تھا، یہ لڑکی اس کی برداشت سے کھیلنے کا رسک لے رہی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو ایمل، ورنہ میں تمہارا لحاظ کھو دوں گا۔ حمان بھی کسی خونخوار بھیڑیے کی طرح انگل شہادت اٹھائے اس کی بازو زوردار جگڑتا اسے تنبیہی میں دودھ دھار سے ہلا کر رکھ چکا تھا۔ ایمل اس کی سرخ ہوتی ہوئی آتی فشاں آنکھیں دیکھ کر خاموش ہونا ہی مناسب سمجھ رہی تھی، مگر اس سے خاموش رہا ہی کب جاتا تھا، سچ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ خیر، میری طرف سے 2 کرو یا 100 شادیاں، میں ہر ایک کی موت پر دعائے خیر کرنے پہنچ جاؤں گی۔ آفٹر آل ایمی بہت نرم دل اور مہربان ہے۔ کچھ دیر وہ حمان کے امڑتے جلال کو دیکھ کر چپ رہی، اور پھر اکاری وار کرتی نزاکت سے اس کے ہاتھ سے اپنی بازو جھٹکے سے چھڑواتی کہہ کر اندر بڑھ گئی۔ البتہ حمان ضرور پتھر کا وہ بت بن کر رہ گیا، جس کو ایک ہلکی سی آہٹ بھی مسمار کر دیتی۔
वो खुद को नॉर्मल न कर सका और अंदर जाने के बजाय सख्त दिल बर्दाश्त अपनी गाड़ी की सिमत बढ़ा और कुछ सेकंड में हमान की गाड़ी स्टार्ट हुई और वहां से चला गया। एमल को जरा अंदाजा न था उसने आज हमान को वाकई हर्ट किया है। सब मेहमान बहुत खुशी खुशी रात 10 तक रुखसत हो गए। हमान की कमी पर एमल ने ही मसाले से ये कहकर बहाना तराशा कि सर को कोई अर्जेंट काम आ गया था। अलबत्ता सब भी उसी वक्त उस चालाक की बात मानकर भूल बाल गए। ये पूरा आज का दिन वाकई सबको थका देने वाला था। सबके जाते ही मानिया और फैसल ने भी इजाजत दी और एमल को शानजे ने रात के लिए रोक लिया था, तो वो भी खुशी खुशी रुक गई। आधे घंटे तक एमल भी शानजे से बातें करते करते सो गई और शानजे भी सोने लेट गई। दिल तो उसका सख्त बुरा हुआ पड़ा था, मगर कहीं दिल से वो अब थोड़ी थोड़ी कायल थी। अभी उसे लेटे 2 मिनट ही गुजरे थे कि शानजे का फोन रिंग करने लगा। शाने ने उठकर फोन तक रसाई पाई तो आलियान का नंबर देखते ही उसे सख्त गुस्सा आया। अब उसे जरूर लगा कि इस चालाक की तबीयत साफ करे। तभी वो फोन उठाए कमरे से मुल्हका टेरेस पे आ गई। एमल तो इस तरह बेफिक्री सो रही थी जैसे न जाने कौन सा स्वाब कमा लिया हो। बेचारा हमान न जाने कैसे जब्त कर पाया होगा इस जहरीली के अल्फाज पर। आली जो लान में ही बेकरारी से टहल रहा था, कॉल रिसीव होते ही अपनी समात और दिल दोनों ही कॉल की तरफ मौजूद अपनी जिंदगी की जीत के मबसूल कर गया। बहुत बुरे हैं आप, सुना आपने, एक नंबर के चालाक और न जाने क्या क्या। क्यों भेजा आपने ये रिश्ता और ये मंगनी, और तो और शादी भी इतनी जल्दी। आई हेट यू, मुझे मजबूर करके रख दिया। मैं इनकार करना चाहती हूँ तब भी नहीं कर सकती। वो जो मुकाबिल नरमी में डूबे चंद लफ्ज सुनने का ख्वाहिशमंद था, ऐसी जली कटी सुनकर थोड़ा उदास हो गया। शानजे का लहजा उसे बहुत हर्ट करता सा लगा था, क्योंकि ये मेरा हक था, मैंने तो हक इस्तेमाल किया है। देखो लड़की, अब तुम आलियान बहरोज की कैदी हो, लिहाजा ये हेट वाला लफ्ज तो अब उन ठा से नामंजूर करता है। तमाम तर उदासी के वो अपने मखसूस शौक अंदाज से गोया हुआ, अगर शानजे को जरा हंसी न आ सकी। उल्टा वो इस बेतकल्लुफी पर मुंह बसोर कर रह गई। मैं आपको जानती नहीं, आप नहीं जानते क्या तुक बनता था रिश्ते का। दोस्ती क्या ठुकराई, आप तो सर पर सवार हो गए। देखे मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये सब हरगिज कबूल करने वाली नहीं। सुन ले, शानजे मुसलसल धौंस जमाने की कोशिश में ये भी नहीं सोच रही थी कि मुकाबिल में कोई हर्ट हो सकता है। आलियान को अफसोस जरूर था कि उसकी मोहब्बत ने उसे ऐसा बेमाया जाना, मगर अब वो किसी कीमत पर शानजे से दस्तबरदार नहीं हो सकता था। शादी के बाद जान जाओगी मुझे, डोंट वरी, अपने बारे में भी सब बता दूंगा तुम्हें, लिहाजा चिल करो। और कबूल तो तुम्हारे अच्छे भी करेंगे मैडम, इसलिए सूखी धमकियां पास संभाल लो। तुम सिर्फ आलियान की हो, अब ताउम्र यही रहोगी। आलियान भी किसी से कम न था, लहजे में पुख्तगी और हर धर्मी मिलाए थोड़ा सा संजीदा सा बोला, और शान से शाक की निगाह से कटी काल को मुंह खोलते देखती रह गई। कुछ देर वहीं सुलगने के बाद पैर पटके वो रूम में चली गई। अलबत्ता आली के चेहरे और पेशानी पर तनाव जरूर आ चुका था। वो इसलिए भी जाग रहा था क्योंकि अलीम बाबा की कॉल आई थी कि हमान घर नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा। अलबत्ता हानिया लोग आज भी यहीं जलाल साहब की तरफ रुके थे। आली जो पहले ही हमान की तरफ से फिक्र में था, अब शानसे से बात करना उसके असाब मजीद तान गया। तुम्हें मैं खुद को हर्ट तो कभी नहीं करने दूंगा, इतनी आसानी से तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकती। शान से दिल खराशी से खुद कलामी करता आली अब हमान का नंबर डायल करता बाहर गेट तक अपनी गाड़ी तक पहुंचा और इत्तेफाक से अब बेल जा रही थी। हमान ने कॉल काट दी और 2 सेकंड तक आली को मैसेज मौसूल हुआ, जिसे पढ़कर आली फिक्रमंद सा गाड़ी लिए उजरत में घर से निकल गया। तू यहाँ है? अलीम बाबा बहुत परेशान थे कि तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। खैर तो है, इतनी रात अलवा की खबर पर। आधे घंटे तक आली हमान के मैसेज को रिसीव करने के बाद सीधा कब्रिस्तान आया, जहां दाखिली पट्टी पर ही इसे एक डंडे के साथ लगी लालटेन की रोशनी में ढलवान पर हिम्मी बैठा दिखाई दिया, जिस पर आली ढेर सी फिक्रमंदी से उस तक पहुंचा और हमान का सख्त संजीदा चेहरा देखकर साथ ही आ बैठा। हाँ बस वैसे ही। हमान की आवाज भारी थी और यूं आली उसके हर बुझे अंदाज को बखूबी जानता था। तभी चेहरा मोड़े हमान के शफाफ मगर उलझे चेहरे पर लिखी अनकही सिलवटें खोजने लगा। तुझे मुझसे अपना आप छुपाने की जरूरत नहीं हिम्मी, जानता हूँ ये जगह तुझे बिना उदासी के उस वक्त कभी नहीं खींचती। बता मुझे क्या हुआ है, तू डिस्टर्ब लग रहा है। वो जो एमल की नकाबले बर्दाश्त बातें सहता सहता हलकान था, आली की सिम से ऐसी मजबूत और मुलायम ढारस तक उसे पुरसुकून ना कर पाई थी। वैसे भी वो अपनी जलन अपनी उदासी किसी से कह नहीं पाता था। बस ऐसे ही शादी की बात हुई तो चला आया अलबा से मशवरा लेने। मेरी छोड़, तू बता, मेरा चीता खुश तो बहुत होगा। फाइनली शानजे से तेरी हो ही गई। हमान ने कमाल खूबसूरती से बात टालकर चेहरे पर खुशी की किरण से जाए आलियान को देखकर मुस्कुराते कहा।
जिस पर आली ने बिना देरी हमान का टालना भांप कर उसकी उदासी की आबरू सलामत रखते हुए एक प्यारी सी मुस्कान जवाब में दी। हाँ यार, फाइनली जानता हूँ वो मुझे अभी भी टफ टाइम देगी, पर मैं अभी जोंक हूँ, चिमट जाऊं तो उतरता नहीं। तुझे तो बेहतर इल्म है मेरा। आली की जिंदा दिली पर हमान ने भी अपने शिकन हुए असाब को बहाल महसूस किया। हवा से उड़ते बाल जमाए वो आली की सिमत मेहरबान निगाहों से देख रहा था। वो तुझे समझ जाएगी जब उसे इल्म होगा वो तेरी मोहब्बत है। टाइम तो हर एक टफ है, ये भी सह लेना, पर हिम्मत मत हारना। अल्लाह से दुआ है वो तुम दोनों का साथ दायमी करें। निगाहें मट्टी की जमीन पर टिकाए हमान का यूं खामोश सा लहजा आली को एक नामालूम सी बेचैनी में मुब्तला कर चुका था। उसे लग रहा था जैसे हमान आज वाकई कुछ अनकही तकलीफ में गर्क है। मैंने देखा है दिल दुखने से चेहरे की रंगत खुद ही बदल जाती है। कौन है जो इस संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ है? कुछ देर दोनों के बीच खामोशी हायल रही और रात की खनक सदा हवा पत्तों से अटकेलियां करती भू भू की आवाजें पैदा कर रही थी। खामोशी तोड़ती आलियान की ये बात हमान की समाज से उतरकर उसके वजूद में सनसनी उतार रही थी। रुख फेरा तो आली उसे ही बगौर देख रहा था। मैं अलबा की कमी महसूस करता हूँ। वो चंद दिन की रफाकत मुझे उस दुनिया की हर खोखली शय से अफसल लगती है। जिस गिरह से वो मुझे बांध कर गई थी उसे खोलना नामुमकिन है। मैं उसकी दुआ पूरी होते नहीं देखना चाहता। आली के सवाल को यकसर नजरअंदाज करके यासियत के संग कहता हमान आली का दिल जकड़ चुका था। तभी वो उसका मजबूत कंधा थपकाए साथ लगाकर उदास सा मुस्कुरा दिया। चल मुझे समझ ले अलबा, वो भी मेरी तरह तेरी दोस्ती थी। ऐसा बेरंग मत हो हिम्मी, मोहब्बत के बिना भी कोई जिंदगी है। वो न सिर्फ तुझे बल्कि इस जिम्मेदारी की डोर से मुझे भी बांध कर गई थी। मैं यकीन से कहता हूँ कि एक दिलफरीब चाहत तेरी मुंतजिर है। तू किसी को खुद की सिमत आने की इजाजत तो दे। जो तेरे रंग रंगेगा उसकी तो किस्मत संवर जाएगी। शादी इतना बड़ा फैसला भी नहीं जितना तूने उसको बोझ बना रखा है। चीयर अप यार। आली की मीठी सी बातों ने हमान के दिल पर दाश्ता मूड को कदरे बेहतर कर डाला था। मगर हमान क्या बताता कि उसके दिल में कौन सा खंजर पेवस्त हो चुका है। उसे एमल की बातें तकलीफ क्यों दे रही थी, और ये सोच सोच कर उसका वजूद अलग खौफ का शिकार था। बज़ाहिर रहमान मुस्कुराने में साथ दे चुका था, मगर उसका दिल किसी अनहोनी ने कपकपा कर रख दिया था। आईने में खड़ी अपना अक्स देखकर वो किसी गहरी सोच में गुम थी। सुबह ही वो नाश्ते के बाद घर आई थी। अब वो फ्रेश होकर यूनी के लिए रेडी हो रही थी। आधे गीले आधे खुश्क बालों में ब्रश फेरे वो रात हमान के कहे अल्फाज याद कर रही थी, और फिर हमान के गायब हो जाने पर जो उसने बहाना तराशा ये सब एमल को झुरझुरी में मुब्तला कर गया। मैंने गलत कहा क्या? मुझे किसी की यूं जाती जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए था। उसका और अलबा का मामला उसका जाती है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे बुरा क्यों महसूस हो रहा है? हालांकि बदतमीजी तो वो भी बराबरी की करता है, पर एमल यूं किसी की कमजोरी पर उसे टीज करना तुझे जेब नहीं देता। पहली बार ही सही, पर एमल को अपने कहे जहरीले लफ्जों पर पशेमानी थी, जिसकी वजह से हमान का वो खूनख्वार जबत वाला चेहरा था जो बार बार उसे याद आकर गिल्ट में मुबतला कर रहा था। अपने बालों की लट्टें पकड़कर बेख्याली में वो अपने जलाद और बदइखलाक रवैये पर पहली बार नजर सानी कर रही थी। उसे अपने इन ख्यालात में मुनहमिक हुए ये भी खबर ना हुई कब मानिया रूम में आई और अपनी लापरवाह तरीन बच्ची को किसी गहरी सोच में गर्क देखकर मुस्कुराते हुए अपने आने की खबर दिए रूबरू आई, जिस पर एमल खफीफ सी बौखला गई। हमारी आफत क्या सोच रही है जो तुम्हें मेरे आने की खबर ना हुई? मैं तुम्हें नाश्ते पर बुलाने आई थी। तुम्हारे बाबा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मानिया ने शफीक सी नरमी से एमल की बाजू से हिलाए कहा, जिस पर एमल ब्रश ड्रेसिंग पर रखे सर हिलाती बाहर निकली तो मानिया भी पीछे चल पड़ी। फैसल जो खुद ऑफिस के लिए रेडी थे एमल को आता देखकर बशाश सी मुस्कान दी मतवज्जो हुए। आ जाए मेरा बच्चा, बैठो। मानिया तुम भी आओ, क्योंकि आज जो बात मैं करने वाला हूँ वो बहुत अहम है। एमल जो गैर दिलचस्पी जाहिर करती बाबा के यूं तमहीद बांधने पर थोड़ी तजस्सुस में आ चुकी थी, फैसल के साथ ही बुर्जुमान हुई, जबकि मानिया भी बैठकर अपनी तमाम तर तवज्जो बाप बेटी की से मबसूल कर चुकी थी। एमल को दाल में कुछ काला सा दिखाई दिया, क्योंकि ऐसा प्रोटोकॉल या तो उसकी शिकायत पर बिस्ती से पहले मिलता था या फिर उसे किसी बात को कायल करने के लिए। फैसल ने नैपकिन से होंठ साफ किए और अपनी नरम निगाहें एमल पर टिकाई, जो उस पुरसरार सस्पेंस के ब्रेक होने की मुंतजिर थे। खैर से तुम्हारी शानजे भी पार लग गई है तो हमने सोचा उसके साथ साथ हम तुम्हारी शादी भी कर दें। क्या ख्याल है तुम्हारा? एमल ने दानिस्ता गरेजा होकर उठना चाहा, जब फैसल उसकी बाजू पकड़कर उसे दोबारा बिठा चुके थे। नरमी की जगह अब संजीदगी ने ले ली और एमल सख्त बरहमसी बाबा को शाकी नजरों से देखने लगी। मेरा ख्याल आप बेहतर जानते हैं, जरूरी नहीं शानजे के साथ मेरी शादी भी हो।
आप दोनों ये मेरे बंधे हाथ देख लो, मुझे ऐसी फजूलियात में कोई दिलचस्पी नहीं, ना मुझे किसी से शादी करनी है। हाँ, अगर एमल आप दो पर बोझ है तो बता दे, मैं कहीं चली जाती हूँ। इस कदर तहम्मुल से पूछे गए सवाल पर एमल का ऐसा रोंका और जला भुना जवाब पाकर फैसल और मानिया दोनों के खिलते गुलाब चेहरे झुलस कर रह गए। कहाँ वो एमी के लिए रिक्वेस्ट करके गए, कहाँ ये लड़की एक पल में उनके अरमान जलाकर खाक कर गई। अपने माँ बाप को इतना हर्ट मत करो एमल कि कल को तुम अपनी औलाद से आंखें ना मिला पाओ। तुम हमारा अव्वलीन असासा हो, ऐसा मत कहो। अपने बाबा के कहे अल्फाज का आखिरी बार मान निभा दो प्लीज। फैसल की आवाज में नमी की आमेजिश ने एमल का दिल जकड़ा। वो जो पहले ही पशेमान थी, यूं बाबा की गुजारिश पर मजीद अफसुर्दा हुई। आप दोनों इमोशनल ड्रामा करके मुझे कायल मत करें। देखें बाबा प्लीज, मुझे ऐसी कोई कैद नहीं चाहिए। मुझे पढ़ना है, अपनी मर्जी से जीना है। ये शादी इस कदर जल्द में नहीं करना चाहती। एमल खुद अब बाबा के थके अंदाज पर नरम पड़ते गोया हुई, जिस पर मानिया और फैसल दोनों के चेहरे बेआस हो गए। तुमसे कोई तुम्हारी आजादी नहीं छीनेगा मेरी जान, भरोसा रखो प्लीज। फैसल अपनी हर मुमकिन सरतोड़ कोशिश करते तासुब से बोले, जिस पर एमल ने सख्त उकताई सांस खारिज किए उठकर बरहम सी निगाह दोनों पर डाली। उफ, आप तो दो मेरी जान लेने के दर पे हैं। जो दिल करे वो करें। लगता है एमल का यहाँ से दाना पानी उठने का वक्त हो गया है। कैरी ऑन, लेकिन जिससे भी आप मुझे बांधने का ख्वाब देख रहे हैं उसे मेरी मुकम्मल इंट्रो लाजमी दीजिएगा। उम्मीद है समझदार हुआ तो खुद भाग जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू। एमल इस बात को अपने सर पर सवार करने के बजाय उल्टा ये कहकर फैसल और मानिया को वर्ताए हैरत में गर्क किए वहां से चली गई, और वो दो होंक बने एक दूसरे की सिम देखकर रह गए। यकीनन ये मिलाप वाकई एटमी धमाका खेज मवाद का मिलन था, जिससे ये लोग तौबा कर लेते तो ही बेहतर था। क्या मतलब ये सब हमें खुफिया रखना होगा, मगर क्यों? सुबह नाश्ते पर आली के अजीबो गरीब इंकशाफ पर जहां मानिया हैरत से खफीफ सा परेशान हुई, वहीं जलाल, रेहान और चाचू की गोद में चढ़कर नाश्ता करती और भी मुतवज्जो हो चुकी थी। बस हानि आप ही ये समझ लें, अगर इन दो को इल्म हो गया कि उनकी शादी का सोचा जा रहा है तो हर शायद तहस नहस हो जाने का खतरा है। जहां तक मुझे यकीन है वो दो एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते, और हम सब इनको शादी में जोड़ने का प्लान बना रहे हैं। रात भले हमान ने सच बात बड़ी महारत से छुपा ली थी, मगर आली इसके बावजूद जानता था कि हमान दुनिया की किसी भी पागल के लिए मान सकता है। मगर एमल का नाम सुनते ही उसका जवाब सख्त ना में होगा। हाँ आली, तो फिर हम क्या ये शादी कैंसिल समझे? गोद में बैठी हूर का भी चेहरा उतरा लगा, जिस पर आली ने मुस्कुराकर उसकी गाल पे प्यार दिया। अरे नहीं, वही तो मैं आप सबको कह रहा हूँ कि निकाह तक हमें उन दो से ये छुपाना होगा तो उनकी शादी किससे हो रही है। मतलब उनको ये पता होगा कि शादी है, पर ये अदराक कि किससे हो रही है ये ऐन निकाह के वक्त पता चलेगा। यूं दोनों इनकार भी नहीं कर पाएंगे और हमारा एटमी तजर्बा भी कामयाब होगा। आली के इस खतरनाक प्लान पर हानिया तो सरासर मुत्तफिक न थी, अलबत्ता जलाल और रेहान समेत और भी थोड़ी कायल लगी। पर जैसा कि वो हिम्मी के लिए टची था तो थोड़ी उदास भी दिखाई दी। लेकिन हमें ऐसी कौन सी मजबूरी है कि एमल को ही डन करें। मैं अपने भाई को ऐसे धमाका खेज लड़की के हवाले ना करूं तो बेहतर है। बाबा सही है ना? कल को जो वो लड़ लड़कर एक दूसरे का कबाड़ा करेंगे तो अच्छा है हम हमान के लिए कोई और लड़की देख लें। हानिया जज्बातियत और परेशानी से बात तो सही कर रही थी, मगर उस पर जलाल थोड़े अपसेट लगे, और बाकी भी अब जलाल की सिम हतमी फैसला जानने के मुंतजिर थे। दरअसल हानिया, मैं और फैसल भी यही चाहते हैं। एमल को सिर्फ हमान ही सुधार सकता है। कुछ रोज पहले ही फैसल ने मुझसे ढके छुपे अल्फाज में रिक्वेस्ट की है कि वो सबको एमल की तरफ से कायल करे। उसने यकीन दिलाया है कि वो एमल को अच्छे से समझाएंगे और वो बिल्कुल किसी बवाल की मुर्तकिब ना होगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि फैसल को किस तरह एक्सक्यूज दूं। जलाल साहब ने तो ये कहकर मामला और उलझा डाला। अब तो आली, हानिया, रेहान और चुप और सैड सा मुंह बनाकर आली के साथ लगी हूर भी संजीदा थी। हिम्मी किसी भी लड़ाकू वाइफ को डिजर्व नहीं करते दादू, मेरे हिम्मी को बेस्ट मिलना चाहिए। हूर का हलकान होकर जलाल से कहना उनको मजीद उलझन जदा कर गया था, जिस पर वो हाथ बढ़ाकर हूर को अपनी गोद में बिठाए प्यार करते हुए मुस्कुराए। तुमको अपने दादू पर भरोसा है ना? हम तुम्हारे हिम्मी को कभी उदास नहीं होने देंगे। जिस तरह हिम्मी हम सबका फेवरेट है, वैसे ही वो अपनी वाइफी का भी बनेगा, मगर साथ साथ उसे टीचर की तरह ट्रीट भी करेगा। तो फिर क्या हमारी गुड़िया हमारे सीक्रेट मिशन में हमारा साथ देगी? जलाल की मुलायमपन से पूछी बात पर हून ने होंक बने एक नजर मामा और बाबा को देखा, और फिर दादू के गले में बाजू फैलाए फर्मा बरदारी से सर हिला गई, जिस पर आली और रेहान दोनों मुस्कुराए। अलबत्ता हानिया का फिक्र से अटा चेहरा हनूज शिकनों से अजबर था। दूंगी, लेकिन आप सब अपना प्रॉमिस मत भूलना, हिम्मी को कोई सैड फील ना मिले। मैं इस अकड़ू एमल के लिए राजी हूँ, मगर उससे अच्छे से बात तभी करूंगी जब हिम्मी करेंगे। खोर साहिबा इतनी सी टिड्डी होकर भी दादी अम्मा की तरह अपना हुक्म सुना रही थी, और सब ताबेदार अंदाज अपनाए जी जान से राजी थे।
रेहान ने अभी भी फिक्रमंद सी हानिया का हाथ पकड़कर उसकी सिम देखा, जो बस जबरन ही मुस्कुरा पाई थी। पूरे लेक्चर के दौरान आज हमान फुल एंग्री मैन बना रहा और आज एमल नकचिड़ी का मनसब मोहतरम हमान ने संभाल कर बेइतनाई और बेरुखी के रिकॉर्ड ब्रेक किए थे। वो एमल जो लोगों के रवैयों को भी जूती की नोक पर रखती थी, उसे हमान की बरहमी मुतासिर कर रही थी। शानजे तो वैसे ही जली भुनी अपने काम में मगन थी, अलबत्ता एमल अपने जल्दबाज दिमाग के घोड़े दौड़ाए कुछ सोच रही थी। हमान जो हमेशा की तरह आज भी 3 पीस में एक प्रोफेशनल प्रोफेसर देता सब निगाहों का जानदार नजारा बना हुआ था। चेहरे पर उगी सुनहरी और भूरी माइल शेव के बीच उसका सुर्खी माइल सफेद रंग और नाक का वही खिंचाव जो बरहमी का इस्तारा था, साफ जाहिर था। जी क्लास, परसों से आपके कुछ रिवीजन टेस्ट लेना चाहता हूँ, ताकि कम से कम आप सबकी टोटल तैयारी का कुछ इल्म हो सके। तो आप सब मुझे कल डिसाइड करके बता दें पहले हम किस टॉपिक से आगाज करें। कुछ भी मसाइल हो, कोई भी इशू हो, आप कल मुझसे डिस्कस करें। कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे। हमान अपना लेक्चर मुकम्मल किए क्लास की तरफ देखकर इन सबको हदायत देता एमल को मुकम्मल इग्नोर किए बाहर निकल गया, जबकि एमल भी इसी स्पीड से उठकर बाहर लग गई जब शानजे की आवाज पर थमी। शाने, तू मेरा कैफे में वेट कर, मैं आती हूँ। शानजे को जल्दी जल्दी में कहकर वो हवा के घोड़े पर सवार हुए। ये जा वो जा। शानजे भी फर्माबरदारी से अपना और एमी का बैग लिए क्लास से बाहर निकल गई। हमान क्लास लेने के बाद अपने ऑफिस रूम में ही जाता था, तभी एमल सीधी उसी तरफ गई और कॉरिडोर पार करते ही वो उसे अपने रूम में जाता दिखाई दिया। एमल ने गहरी सांस खारिज के खुद को नॉर्मल किया और हमान के दाखिल होने के बाद खुद भी दौड़कर रूम तक पहुंची। वो जो अभी अपने टेबल पर रखा लैपटॉप पैक कर ही रहा था कि सामने से एमल को आता देखकर लैपटॉप छोड़े तैश ज़दा हुए एमल को देखने लगा, जो न जाने अब किस लिए हमान के रूबरू आई थी। सिल्वर शेड देती व्हाइट शर्ट और जीन्स में वो आम हला जैसी ही सरफिरी और चेहरे से पुरइत्तेमाद होकर हमान की आंखों में बेखौफी से देख रही थी। तुम यहाँ से शराफत के संग निकल जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। एमल का अंदाजा दुरुस्त था कि वो इस पर सख्त बरहम था, तभी बात का आगाज ही तीर अंदाज लहजे से किया। हमान की इस तरारी निगाह को रत्ती बराबर अहमियत न देती एमल कुछ कदम बढ़ाए टेबल तक आई और चेहरे पर थोड़ी मुस्नुई उदासी सी फैलाकर हमान को भी मशकूक कर गई। मैं भी यहाँ कोई जंग करने नहीं आई गेंडे, बस ये कहने आई हूँ कल मैंने गलत कहा जो कहा। कम से कम मुझे अपनी दुश्मनी में भी ऐसे अंदाज को अपनाना नहीं चाहिए था, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ हमारी लड़ाई में अब तुम्हारी अलबा नहीं आएगी। उस रोज तुमने मुझसे सॉरी किया था जो मैंने कबूल नहीं किया था, और आज मैं करी हूँ। तुम भी ठुकरा सकते हो, लेकिन वही बात कि मैं भी फर्ज निभा रही हूँ। एमल की ऐसी नाकाबिले यकीन गुफ्तगू पर हमान को रत्ती बराबर यकीन न था। तभी वो टेबल से घूमकर चलता हुआ एमल तक आया, जो पता नहीं कहाँ से मासूमियत उधार लाई थी। हमान के देखने का अंदाज एमल को अभी भी खफा और गुस्सील लग रहा था। तुमने मेरा सॉरी कबूल नहीं किया, ये तुम्हारा बैड लक था मिस एमल, लेकिन तुम्हारा कबूल करना मेरा बैड लक है। मैं आज के बाद तुमसे बात करने में भी दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। मैं तुम्हारी कही किसी बात को याद रखना भी अपने शौर की तौहीन समझता हूँ। तुम क्या हो, ये तुमने मुझे चंद दिनों में अपनी इस बदजुबानी से खूब बावर करवा दिया है, लिहाजा अच्छा यही होगा अपने काम से काम रखो। आज हमान के चेहरे पर वही तासुर था जो मैदान जंग में जीतने वालों के चेहरे पर होता है। एमल को तो अपनी समात पर शुबा गुजरा, इतनी इंसल्ट वो भी दुश्मन के हाथों उसके वजूद को आग लगा गई। वो तपिश देती आंखों के संग हमान का पुरसकून चेहरा देखती रह गई। तुम मुझसे बड़े बदजुबान हो, मैं तो इसलिए चली आई कि उस्ताद थोड़ी सी इज्जत दे दूं, पर तुम्हें तो इज्जत रास ही नहीं। एमल ने भी तो झुकना ना सीखा था, भले आज हमान की दिल जलाती बातें उसे गुस्से के बजाय उदास कर गई थी, मगर वो जख्मी शेरनी की मानिंद गुराना ना भूली थी। हमान ने बेजार निगाह एमल पर डाली, जैसे उसकी शक्ल तक से उसे उलझन हो। तुम मुझे इज्जत मत दो, ना मुझे तुम्हारी दी इज्जत की जरूरत है। इज्जत देना भी उसे सूट करता है जिसकी अपनी कोई इमेज हो। हमान का लहजा तंजिया था, वो इस लड़की पर अब कोई रहम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे अपने नुकसान का खदशा था। तुम इंतहाई कमजोर हो, समझते क्या हो खुद को। एमल की इमेज तुमसे तो अच्छी है, ये तंज दोबारा मत करना, अच्छा नहीं होगा। एमल भी तस्दीक सदा अंदाज अपनाए हार ना मानने पर बाजिद थी, और हमान का सर अब घूमना शुरू हो रहा था। चली जाओ यहाँ से एमल, दोबारा मत आना। हमान ने शदीद जब्त से अपनी गर्दन और माथे की रगे ताने वार्निंग देते कहा, और एमल खुद को कोस रही थी कि एक छछुंदर पर तरस खाए यहाँ क्यों आई। अपनी धौंस अपने पास रखो गेंडे, मैं भी मरी नहीं जा रही तुम्हारी शक्ल से, वैसे मुझे सख्त वहशत होती जा रही हूँ। तुम्हें अपनी खुदसरी मुबारक। एमल भी जुलबुलाती हुई मुड़ी और तेज तेज कदम चलती ऑफिस से निकल गई। अलबत्ता हमान ने सख्त बेकरारी से हाँपते हुए अपने बालों में हाथ फेरे खुद को वहीं कुर्सी पर लड़खा दिया। एक गहरा साया था जो हमान की रगों में उतरकर उसे तबाहशुदा पेश कर रहा था। हमान ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक न था।
मगर एमल तो बाबा से ये तो पूछ लेती कि किस नमूने से बांध रहे हैं, अजीब मखलूक है तू। वापसी पर एमल घर के बजाय शानजे की तरफ ही आई थी और सुबह से शानजे उसकी शादी वाले इंकशाफ पर दंग थी और अब भी उसकी सुई वहीं फंसी थी। एमल ने लापरवाही से बेड पर ऊंधे लेटकर अपना नेल पेंट मुकम्मल किए, अब फूंक मारकर सामने तफ्शीश ज़दा मुंह बनाकर सीने पर हाथ बांधी खड़े शाने को देखा। आई डोंट केयर, मुझे कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे पता है कोई इंसान तो मुझसे शादी लेने का खतरा ना लेगा, लिहाजा बेफिक्र है। एमल की इस गैर दिलचस्पी लेते अंदाज पर शानजे दहलते दिल के साथ वापस आकर बैठी और हैरत से एमल का सुकून मुलाहिजा किया। व्हाट एमी, तुझे जरा भी फिक्र नहीं? और अगर वाकई अंकल फैसल को कोई एलियन मिल गया फिर क्या होगा? बिना जाने और देखे शादी कर लेगी? मुझे यकीन नहीं आ रहा तेरी बात पर। शानजे का तो सदमे से चेहरा सफेद पड़ गया, मगर एमल का सुकून था कि गारत होकर भी बढ़ता जा रहा था। उठकर तकिया गोद में धरे एमल ने गर्दन मोड़कर शानजे को तसल्ली से देखा, जो आंखें खोले फिक्र से आधी लग रही थी। फिर तो टू गुड होगा ना, खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे एलियंस तो। सच कहूँ तो मुझे बस जिंदगी का मकसद हमान से बदला लगता है और उसके अलावा मैं किसी मामले को लेकर फिक्रमंद नहीं होना चाहती। होले शादी मैं भी देख लूंगी इस मनहूस को भी, जिससे सारी दुनिया छोड़कर मैं ही मिली। इस बार फैसल लुगारी और मानिया लुगारी ने मुझ जैसी बला को सर से उतारने का पक्का इंतजाम और इरादा कर लिया है। और तुझे पता है एमल, किसी पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। मुझे अपने अलावा किसी की परवाह नहीं, लिहाजा मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझे अपना सुकून बनाना और दूसरे का गारत करना खूब आता है मेरी जान। एमल का लहजा भले नखुवतपन से लबरेज था, पर आज शानजे को पहली बार उसके लहजे में अनकहा दुख महसूस हुआ, जिसे वो जाहिर किए बिना मुस्कुराती हुई एमल को एक जानदार जफ्फी दिए कुर्बान हुई। वाकई एमल इस मामले को जो हल्का ले रही थी, उसकी वजह उसका खुद पे यह गरूर ही था। पर यही लापरवाही एमल का पछतावा बनने वाली थी, क्योंकि दूसरी सिमत हमान को भी लाइलम रखा जाना था। इस सिलसिले में कल तमाम बड़ों की एक खुफिया मीटिंग जलाल बहरोज के घर तय थी और उसके बाद ही मानिया और रेहान वापस अफंदी हाउस आने वाले थे। दूसरी सिमत शाम को हुरिया आली के साथ वापस आ गई थी और हमान को भी हुरिया की कमी गवारा न थी। हानिया, फादी और रेहान आज भी वहीं रुके थे। रात का खाना आली, हमान, हूर और अलीम बाबा ने साथ खाया था। एमल भी रात का डिनर शानजे के साथ ही किए घर आई थी। हिम्मी, आपको बस ये बताना है कि आली के साथ आपकी भी शादी हो रही है, आप एग्री है ना? डिनर के बाद हुरिया ने हिम्मी की गोद में बैठे चेहरा उठाकर उसे कहा, जो हैरान होकर कभी हूर को देख रहा था और कभी सामने काफी पीते आली को, जो गुदगुदी देता तबस्सुम लिए शरारती पोज दे रहा था। लेकिन एकदम से मेरी शादी किधर से आ गई? हमान के लहजे का इस्तफसार हुरिया को थोड़ा सैड लगा, जबकि आली साहब ने शादी तक फुल चार्ज और चौकस रहने का इरादा बांध रखा था। आसमान से टपकी है हजूर कैच करें, क्या मतलब यार, शादी तेरी और मेरी दोनों की बात हुई थी ना? बस मैं नहीं चाहता कि मेरा जिगर मजीद कमारा रहे। लड़की हम सब ने पसंद कर ली है, जो तुझे शादी के बाद ही मिलेगी। एक तो शादी, ऊपर से राजदारी। हमान को हकीकतन शुबा गुजरा जैसे ये दो उससे कुछ छुपाने की कोशिश में है। हूर, तुम बताओ कौन है लड़की? हमान ने मुस्नुई घूरकर आली की भीनी भीनी हंसी देकर लाड़ से हूर की गाल छुए पूछा, मगर हूर खुद भीना भीना मुस्कुराकर आली को आंख मारे फौरी मासूम मुंह बनाकर हमान का मुंतजिर चेहरा देखने लगी। हिम्मी, वो बहुत प्यारी सी परियों जैसी और प्रिंसेस जैसी है। वो आपकी तरह गोरी भी है और लवली भी। मम्मा और दादू ने पसंद की है। दरअसल हम सब चाहते हैं कि आप उनसे शादी पर ही मिलें, है ना आली? हूर की ऐसी एक्स्ट्रा शरीफ बात हमान को जरा हजम न हुई। अलबत्ता इन दो शरारती टोले की आंखों आंखों में शरारती तकरार भी हमान बड़ी महारत से देख चुका था। हुरिया की अब इतनी मासूमियत पर हमान को भी मजीद इसरार करना भला न लगा। अलबत्ता हमान की ये जासूस नजरें आली के गुलाब चेहरे पर जरूर फोकस थी। हाँ जी, और क्या, पहले मिलने से रूप नहीं आएगा। हम ठहरे मॉडर्न लोग, पर तू जरा मशरकी लड़का है और वो ठहरी मशरकी लड़की, तो बस पर्दे का आला इंतजाम फरमाया गया है। कोई आली से पूछता कि दिल में लड्डू फूटना किसे कहते हैं। बेचारा हमान तो सख्त कंफ्यूज था कि अब ऐसी भी क्या राजदारी, ये दो कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, पता लगाना होगा ऐसी कौन सी पर्दादार परी मिली है इन सबको। भाई आली साहब, आप होंगे चलाकों के सरदार और हूर बीबी आप होंगी ड्रामा क्वीन, मगर हमान साहब आप सब पर भारी थे। हमान ने दिल ही दिल में इन दो मशकूक नफूस के इशारे से मुलाहिजा फरमा कर अब इस पर्दे को उठाने का इरादा कर लिया था। अब क्या होने वाला था ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते थे। जब से वो वापस आई थी, एक इस्तराब और बेचैनी थी जिसने एमल को खुद में गर्क कर रखा था। कुछ देर अस्तबल में वो हुप के पास चुपचाप बैठी रही और जब वहां भी अच्छा ना लगा तो अपने रूम में आ गई। क्या वो जिस शय से दानिस्ता गुरेजा थी वो हमान था? ऐसी बेचैनी
जो उसे अपनी जिंदगी में पहली बार लाहक हुई थी। टांगे लटका कर सोफे पर बैठी वो मुंह गुब्बारा किए अपने बालों को एक आवारा लट उंगली पर घुमाए बस किसी ख्याल को सोचती ही चली जा रही थी। अगला पोस्ट कुछ यूं था कि खुद मोहतरमा फर्श पर कालीन के ऊपर और टांगे सोफे पर खड़ी किए दोनों बाजू सीने पर बांधे फानूस को देख रही थी। फिर भी उसे करार ना आया तो उठकर बेड पर जा गिरी। कुछ देर दोनों हाथ सर तले रखे वो फिर से ट्यूबलाइट को घूरती रही और अगला पोस्ट फिर से एलियन की तरह आधा बेड पर आधी सर बेड से लटकी पाई गई। अपने लटके हाथों से कलीन के रेशे निकालना और उसे अच्छा और मजेदार लगा और 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पहुंच का कलीन धागा धागा किए फिर से सख्त उकताहट से फूंक मारे वो सीधी जा लेटी। ओहो क्या है ये, कौन सी बेचैनी लगी है तुझे एमल, क्या मुसीबत है। अपनी हालत जार पर खुद को झाड़ती एमल अब तकिया ठीक किए उस पर जा लेटी। मगर कोई तो ऐसा मुद्दा जरूर था जिसने इस शेरनी को हिलाया हुआ था और वो छछुंदर क्यों बार बार दिमाग में घूम रहा है। मेरे प्लीज अल्लाह जी मेरे दिमाग से उसको निकाल दे। और यनीन कहाँ मरी है, उफ क्या करूं मैं। बेहद बेबसी एमल बौखलाकर फिर से उठ बैठी, अपने दिल पर हाथ रखा जो स्लो स्लो सा चल रहा था। एमल ने बेजारी से घड़ी पर 12 बजे देखे और मजीद अफसुदा हुई। इस वक्त तक तो वो गधे घोड़े ऊंट बकरियां सब बेचकर सो जाती थी और आज उसके जहन के किसी गोशे में नींद न थी। अलबत्ता उसका ध्यान बार बार हमान पर जाकर रुक रहा था। पहले तुमने मेरा सुकून तबाह किया, अब नींद भी छीन ली। तुम पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और मेरा बस नहीं चलता तुम्हें इस जहां से गायब कर दूं। प्लीज मुझे उसे नहीं सोचना, आप मेरे दिमाग से उसका ख्याल और उसका एहसास निकाल दे अल्लाह जी, वरना मैंने सच में कुछ कर देना है इस लूमड़ को। अब एमी की बर्दाश्त दम तोड़ रही है, चेहरे पर शदीद परेशानी और इस्तराब फैलाए वो खुद पर उतरते जादू को एक नई चाल समझ रही थी। बेवकूफ तो वो हमेशा से थी, आज साबित भी हो गया था। सोने की कोशिश जारी रखने पर वो फिर से मुंह बसोर कर लेट चुकी थी। दूसरी सिमत हुरिया को उसके रूम में सुलाकर आली और हिम्मी अब लाउंज में थे। हमान ने उसके बाद भी आली से बात निकलवाने की तक्को दो की, मगर ये बड़ा घुन्ना था। क्या तुझे अलबा से मोहब्बत ना करने का कोई कलक है? उन चंद दिनों के साथ में मोहब्बत कभी महसूस नहीं हुई? आखिर को तुम दो निकाह के रिश्ते में थे। उस वक्त रात की तारीख और खामोश सातों में आली का पूछा जाने वाला ये सवाल हमान के चेहरे पर एक मध्यम तबस्सुम सा जगा गया था। आली को हमेशा से हमान के मुंह से अलबा का जिक्र सुनना अच्छा लगता था। उसने सारी मोहब्बत खुद पे फर्ज कर ली थी। आली, मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत भरी हुई है, उसका वजूद और दिल किसी अजाफी जज्बे की तलब में कभी दिखाई ना दिया था। निकाह अपनी जगह, मगर मुझे उसमें सिर्फ अपनी एक भलाई और जजा दिखाई देती थी। उसके मेरे साथ जुड़ने से मैं भी भर गया था और आज तक मैं इस सानिया की कैद में हूँ। हमान का बताते हुए चेहरा पुरशौक था और आली खुद मुस्कुराकर इन बातों की मिठास अपने दिल में उतरती महसूस कर रहा था। वो तेरी वाकई में जजा ही थी, जिस तरह तूने इस पे आस लागर और मुर्दा वजूद को शादमानी दी है, उससे अल्लाह बेहद राजी होगा। वो तेरी आखिरत और दुनिया संवारने का वसीला थी। तुझे अल्लाह बहुत नवाजेगा, मगर हिम्मी मेरी एक बात याद रखना, तू कभी हिम्मत नहीं हारेगा। आज मुझसे ये एक वादा कर, और मेरा ये वादा मेरी तसल्ली के लिए है। यखलक आली के लहजे का संजीदापन और यूं मुनफरिद कसरत लेना हमान को भी चौंका गया। हमान ने रुख फेर कर आली के चेहरे पर लिखी मोहब्बत देखी और मुस्कुराकर उसकी गाल थपकाए। सर हिलाकर खुद आली का सीना भी ठार गया। इंशाल्लाह, चल अब इस खुशी में बता दे कौन है लड़की। आली की बेदम हंसी तो हमान की इस चालाकी पर फैली और आली का ये मुंह खोलकर हंसना हमान को और चिढ़ा गया, जिसका मतलब यही था कि ये मीसना तो कभी कुछ बताने वाला न था। मुंह बसोर कर मुंह फेरते हिम्मी पर आली को रचकर प्यार आया, पर वो क्या है कि मिशन राजदारी भी तो कायम रखना था। आली बाद में भी कितनी देर मुस्कुराता चला गया और हमान का तजस्सुस था कि उसे पर लग गए। यार, मुझे एक नई मुसीबत आन चिमटी है, अभी थोड़ी देर में आलियान आ रहा है। बाबा से उस चलाक ने मुझे शॉपिंग पर ले जाने की परमिशन ली है और सुबह बाबा ने मुझे ऑर्डर किया है कि उसके साथ जाऊं। अभी तक हमान क्लास में नहीं आया था। लेमन टॉप और व्हाइट टाइट में एमल ने आज अपनी टेल पोनी कर रखी थी और बहुत फ्रेश लुक में होशरुबा लग रही थी। ये अलग बात कि उसे रात ठीक से नींद नहीं आई थी। शानजे भी डल ग्रीन और ब्लू शर्ट और स्कर्ट में बाल खोले हुए रजिस्टर पर लकीरें लगाती बुरा मुंह बनाए एमल को इन्फॉर्म कर रही थी, मगर वो मोहतरमा तो वहां थी ही नहीं। एमी यार कहाँ गुम है? शानजे को यही लगा वो किसी दीवार से बात कर रही है। अलबत्ता मोहतरमा एमल तो हमान के एक नए टार्चर का मंसूबा बना रही थी। शानजे ने टोका रसीद किया, तब एमल अपने ख्यालात से बाहर निकली और शानजे उसके ये गहरे ख्यालात देखकर अब शदीद तजस्सुस में थी। अरे यही हूं ना, तू जा, वैसे भी आज एमल एक खास मिशन सर अंजाम देने वाली है। एमल ने किसी सोच के जेरे असर फौरी कहकर रुख मोड़े दरवाजे की सिम देखा और शान से उसकी ये बेकरारियां बड़ी तवज्जो से देख रही थी।
مجھے توپ کے دہانے بھیج کر کوئی پنگا نہ لے لینا ایمی، بتا رہی ہوں ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب کون سا مشن سوچ رہی ہے مجھے بتا۔ شانزے کا دل کسی نئے طوفان کا الارم دے رہا تھا، مگر ایمل اس کی استحفامیہ نگاہوں سے بچ کر بتیسی پھیلائے مزید اسے تپا چکی تھی۔ مشن نیند اڑانے کا بدلہ، ساری رات چھچندر میرے خیال میں آ کر مجھے تنگ کرتا رہا ہے، اس کے بدلے چھوٹی سی سزا۔ ایمل کی ایسی دیوانی بات سن کر شانزے کو واقعی اس کے دماغی توازن پر شبہ سا ہوا، اور تبھی وہ اسے پھٹے تاثرات سے دیکھ کر خود ایمل کو اب ہنسا گئی۔ اوف میرے اللہ ایمی، اب خیال آنے میں اس کا کیا قصور؟ یہ دیکھ میرے بندے ہاتھ کوئی نیا سیاپا نہ ڈال لینا۔ آنکھیں نکالے تفشیش زدہ سی شانزے کو ایمل نے بڑے مزے سے کندھا مارا، اور شانزے تو سر تھام کر رہ گئی، نہ جانے اب ایمل کیا کارنامہ سوچ رہی تھی۔ مزید بات کا وقت نہ ملا، کیونکہ حمان اپنے پورے وقت پر پہلی کلاس لینے پہنچ چکا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایمل نے حمان کا سر تپا جائزہ لینا اپنا فرض اولین سمجھا۔ مکمل بلیک میں اس کا سرخی مائل سفید رنگ آج مزید کھلا تھا۔ حمان آتے ہی کلاس سے گفتگو میں لگ چکا تھا، اور ایمل سارا وقت بس اپنا پلان سوچتی رہی۔ حمان تو اب ایمل کی شکل سرسری دیکھنا تک چھوڑ گیا تھا، اور یہی بات ایمل کو گوارا نہ تھی۔ وہ جو ایٹیٹیوڈ گرل تھی، کسی دوسرے کا بھرم برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ پہلی کلاس کے بعد شانزے کو جانا پڑا، کیونکہ آلیان صاحب وقت سے پہلے ہی بازی مارنے پہنچ چکے تھے، اور شانزے اس کا کہا تو ٹال دیتی، مگر بابا کی ہدایت کو وہ رد نہ کر سکتی تھی۔ آلی نے بھی رات ہی منصوبہ بنا لیا تھا کہ کل وہ شانزے سے ملاقات کرے، اور اسی لیے اس نے رات ہی اکمل انکل سے بڑے شریفانہ انداز سے اجازت بھی لے لی تھی۔ اسے پتا تھا شانزے اسی صورت انکار نہ کر سکے گی۔ ایمل نے حمان کی دوسری کلاس جان بوجھ کر مس کر دی، کیونکہ وہ جو سوچ رہی تھی اس پر عمل درآمد کے لیے محنت بھی درکار تھی۔ حمان نے ان دو کی غیر موجودگی کو نوٹس کیا تھا، خاص کر ایمل کا کلاس میں نہ آنا اسے بھی بے چین کر چکا تھا۔ باجی آپ میری نوکری کے پیچھے پڑ گئی ہیں نہ، میں تو یہ نہ کروں گی۔ اتنے اچھے بندے کے ساتھ یونی کے کیفے کا یہ 16 سالہ منیب نامی لڑکا، جس کے پاس کھڑی ایمی خاصی مشکوک تھی، اور وہ ایمل کے بتائے کام پر صاف منکر ہوئے انکاری تھا۔ میرے بھائی نہیں ہو، دیکھو میں تمہیں پورا اس کا معاوضہ دوں گی۔ پہلے بھی تو تم ہمارے کتنے الٹے کام کر چکے ہو، تم نہیں جانتے میرے بھائی، وہ بس اچھا نظر آتا ہے، ایک نمبر کا جلاد پروفیسر ہے، اور میں تمہیں بس اس کی گاڑی کے چاروں ٹائر پنچر کرنے کا کہہ رہی ہوں، اسے جان سے مارنے کی سپاری تھوڑی دی ہے۔ وہ جو سادہ لوح سا منیب دم سادے کھڑا تھا، ایمل کی مصنوعی دکھ بھری کہانی پر اب ذرا ذرا قائل لگ رہا تھا۔ ایمل نے اپنے بیگ کی پاکٹ منی سے 5000 کا چمچماتا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا، تاکہ اس کا موڈ بنے، اور ایسا ہی ہوا۔ 5000 دیکھتے ہی گویا منیب کی ساری بہادری جاگ گئی۔ اچھا آپ اتنی منت سماجت کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، پر باجی میرا نام نہ آئے، اور یہ آخری ہوگا، اور اس کے لیے مکینک بھی میں لا دوں گا، کیونکہ میرا دل بڑا نرم ہے۔ اللہ اللہ کر کے منیب مانا تو ایمل نے بھی کھسیانی ہنسی ہنس کر شینی کی مانند منیب کی کمر تھپکائی، اور اسے یہ کام کلاس ختم ہونے سے پہلے کرنے کا اشارہ کرتی خود کیفے کے اندر بیرونی طرف بنے ایک ٹیبل پر جا بیٹھی۔ وہاں سے یونی کا پورچ اور گیراج کچھ فاصلے پر واقع دکھائی دیتا تھا۔ منیب نے پہلے ایمل کا کافی اور لیمن کیک کا آرڈر اسے سرو کیا، اور پھر دانت دکھا کر اپنے کام کو کرنے گیراج چلا گیا۔ اتفاق سے جس ایریا میں حمان کی گاڑی کھڑی تھی وہاں کوئی کیمرہ بھی نہیں تھا، ایک تھا مگر اس میں صرف گاڑی کی چھت ہی دکھائی دیتی تھی۔ ایمل مزے سے کیفے میں بیٹھی اپنی کافی اور کیک کھانے کے ساتھ ساتھ بڑے مزے سے مسکراتی جا رہی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ اب تک اسے یہ نایاب خیال پہلے کیوں نہ آیا۔ دیر آئے درست آئے کا فارمولہ اپنائے ایمل میدان میں واپس آ چکی تھی۔ ہم تو شاپنگ پر جا رہے تھے نا، یہ تو کوئی کیفے یا ریسٹورنٹ ہے آلیان صاحب، جو پہلی بار شانزے کو ایز اے فیوچر وائفی پک کرنے آئے تھے، اپنی چہکتی دمکتی دل فریب تیاری سے ہی شانزے پر روب جما چکے تھے۔ ویسے بھی محترم کے کثرتی وجود کا بھی اپنا دبدبہ تھا۔ یونی سے 10 منٹ کی ڈرائیور پر ایک خوبصورت سا اوپن ایریا پہ بنا ریسٹورنٹ دیکھ کر آلیہ نے گاڑی روکی، جس پر شانزے نے پہلا اعتراض اٹھا کر آلی کی سم دیکھا، جو اس کے اعتراض اور سوال کو مسکرات کر ٹالتا گاڑی سے نکلا، اور پھر پھرتیلے انداز سے گھوم کر شانزے کی سم کا ڈور کھولے اپنا ہاتھ بڑھا گیا۔ شانزے کو اس کی یہ بے تکلفی دیکھ کر تھوڑا عجیب لگا، مگر وہ اس کانفیڈنس سے ہاتھ پھیلائے منتظر تھا کہ شانزے کو انکار کرنا تھوڑا برا لگا، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلی۔ شاید یہ پہلی بار کا لمس ہی کچھ ایسا تھا کہ آلیان کے خوبصورت چہرے پر دلکش سی مسکان نے مزید چاشنی پھیلا دی تھی۔ میں نے دراصل آج بریک فاسٹ نہیں کیا تھا ایکسائٹمنٹ میں، تو سوچا شاپنگ کرنے سے پہلے تھوڑی پیٹ پوجا کر لی جائے، اجازت ہے؟ شانزے کی سم بہت نرم نگاہیں جمائے وہ اس کا ہاتھ ہنوز پکڑ کر شوخی سے بولا، جس پر شانزے نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر تھوڑی کنفیوز ہو کر ہاں کہی، جس کے بعد وہ اندر داخل ہوئے۔ ریسٹورنٹ بہت پیارا اور خوبصورت تھا۔ ایک طرف مصنوعی جھیل بنا کر دلکش نظارہ بنایا گیا تھا، تو دوسری طرف چھوٹا سا پارک تھا، اور اس کے ساتھ کیفے کی مین بلڈنگ۔ آج کل باہر بھی لوگ پرجمان تھے،
क्योंकि अब मौसम की शिद्दत ज़ायल हो चुकी थी और लोग मौसम इंजॉय करना अजीज जानते थे। आली ने भी बाहर की ही एक मिनी टेबल चूज की और शांजे को बिठाने के बाद वो वेटर को इशारा किए खुद भी अपने ग्रे कोट के बटन खोलता बुर्जमान हुआ। शांजे को यह सब अभी भी बहुत अजीब लग रहा था। तभी वो आली को देखने के बजाय इधर उधर निगाहें घुमाकर ज्यादा कंफर्टेबल थी। आलियान का दिल तो शांजे का दीदार करते ही महक उठा था। वो जैसी शांजे को समझता था वो बिल्कुल वैसी ना कहीं वो वाकई मशरकी लड़कियों जैसी नाजुक थी। जिस तरह पहली बार छूने पर उसके चेहरे पर इस्तराब जागा, ये आली को आज का फरहत बख्श मंजर लगा था। वो शांजे को ही जी भर के देख रहा था जब वेटर ने बड़ी नाजुक मुदाखलत की। मेरे भाई ऐसा करो, मेरे लिए एक वेज सैंडविच और मजेदार बनाना मिल्क शेक ले आओ। शांजे तुम बताओ क्या खाओगी? आलिया ने वेटर को अपनी पसंद बताते हुए शांजे को देखा, जो सोच में गुम हुए आली को देख रही थी। मेरे लिए ऑरेंज जूस ले आए। शांजे को इस वक्त रही सही भूख भी जाती महसूस हुई। तभी वो बस मुरव्वत में यही कहे सर झुकाकर सीधी हुए बैठी और आली ने मुस्कुराकर वेटर को ओके कहकर भेजा और अपनी तमाम तवज्जो मिस हसीनो करीन पर सबत की। वो उसके हर बौखलाए अंदाज पर फिदा हो रहा था। वो उसकी नाजुक सी आंखें और पतले नुकूश पर लिखी सुर्खी, उसके हाथों का कभी उसकी ठोड़ी और कभी टेबल को टच करना। शांजे क्या क्या नहीं था इस मीठी गूंज में। कुछ शांजे को लगा किसी अमृत से धुली आवाज ने उसका नाम पुकारा था और उस सदा पर शांजे का चेहरा उठाना और उसे देखना आली को लज्जत अमेज लगा था। जी कहें वो कैसे भी बोलने में कामयाब हुई। जिस तरह आली ने पुकारा था ये तो उससे सरासर बरअक्स और मुत्तजात लहजा था। जानती हो, अगर कभी कोई मुझसे पूछे कि मांगी गई दुआ की शक्ल कैसी हो सकती है तो मैं बिला झिझक तुम्हारा नाम लूंगा। आलियान का लहजा और लफ्ज शांजे को सकूत में मुब्तला कर गया। वो होंकज़दा सी आली के कहे अल्फाज में ही उलझ गई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वही अजली लापरवाही सी। वैसे अब तो आली उसका हकदार हरगिज न था। अपना हाथ मुझे दो। आलिया ने बिला झिझक मेज पर धरे शांजे के हाथ के करीब अपनी हथेली फैलाई और शांजे उसकी इस फरमाइश पर बरहमी से उसे देखने लगी, जो इस वक्त शदीद संजीदा था। नहीं दूंगी। आप खुद पर काबू रखें, ये पब्लिक प्लेस है। अब की बार शांजे का अंदाज खासा नाराजगी वाला था, मगर असल धचका तो शांजे को तब लगा जब आलिया ने उसका पीछे खींचा हाथ जबरदस्ती अपने हाथ में ले चुका था। गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि शांजे चाहकर भी अपना हाथ छुड़वा ना पाई और बौखलाकर इधर उधर देखने लगी। शांजे के यूं करने पर आली ने उसके हाथ पर दबाव डाले उसे अपनी सिम देखने का इशारा किया, जो अब गुस्से में भी लग रही थी। तुम नहीं दोगी तो हमेशा यूं ही अपना हक तुमसे छीन लूंगा। कोई नहीं जो हमें देखे, सब अपने काम से काम रखते हैं, लिहाजा तुम उस वक्त सिर्फ मुझ पर तवज्जो दो। आली के लहजे की नरमी ने अजारादारी का रंग ओढ़ा और शांजे के तो ये सुनकर रोंगटे खड़े हो चुके थे। ऊपर से वो अब जिस अंदाज से उसके हाथ को खड़ा किए उसमें उंगलियां डाल रहा था, ये शांजे के जब्त पर वाफे चोट थी। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, मुझ पर रोक जमाने की कोशिश भी मत करिएगा। हाथ छोड़ें आलियान, प्लीज। शांजे ने बेरहमी के संग आली को भड़कते हुए वार्निंग दी, मगर आली तो बस शांजे को देखने में ही मसरूफ था। गुलाम तो हम हैं आपके, फ्यूचर जोजा साहिबा, और रोब नहीं है, बस थोड़ा सा हक है। आई थिंक जरूरी है। कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे, इनफैक्ट बहुत कुछ। आलियान की बढ़ती बेबाकी पर शांजे बिल्कुल कंफर्टेबल ना थी और आलियान उसकी बेरुखी पर उदास था। आली की सारी बातों पर शांजे ने पूरा जोर लगाए अपना हाथ इस बुरी तरह खींचा कि वो सुर्ख होकर आली के हाथ से आजाद हुआ, जिसे वो सख्त बुरी तरह मसल कर शाकी निगाह से आली को देखने लगी, जो उसके हाथ को ही फिक्र से देख रहा था। बिना हाथ पकड़कर भी कह सकते हैं सुन रही हूँ। देखें क्या हाल कर दिया। ऐसा करेंगे मेरे साथ आप? दुश्मनी क्या हो गई है आपको अचानक मुझसे? देखें, मुझे पहले ही आप पर बहुत गुस्सा है, ऊपर से आपकी ये हरकत। शांजे ने दुखी सा और बरहम होकर साफ साफ जताते कहा, और आली को और तो किसी बात पर नहीं अलबत्ता हाथ सुर्ख कर देने पर अफसोस था। वो उसकी आंखों में देखकर मजीद संजीदा हो चुका था, जो उससे बहुत खफा लग रही थी। सॉरी, रहने दो, फिर कभी। आली का मूड ऑफ होता महसूस किए मजीद बरहम हुई, जो अब रूठा सा वेटर के आर्डर सर्व करते नाश्ता शुरू कर चुका था। एक तो गलती भी खुद और खफा भी खुद। शांजे ने अपने जूस का एक सिप लेते हुए आली को देखा, जो इसे देखने में भी मुहताज हो चुका था। कह दे उदास मत हो। शांजे जितनी भी हिटलर बन लेती, वो एमल की तरह बेरहम न थी। उसे एहसास हो जाता था और इमोशनल भी फौरी होती थी। आलियान ने नजर उठाकर एक उदास और संजीदा सरसरी सा देखा और नैपकिन से अपने होंठ साफ किए सीधा हुआ। शांजे भी अब पहले से ज्यादा मुतवज्जो थी। तुम्हारा गुस्सा जायज है, मेरे रिश्ते पर भी, मंगनी पर भी और अब हाथ पकड़ने पर भी। तुम्हें ये सब तो दिखाई दिया, इसके पीछे की वजह नहीं समझ आई क्या? सवाल के बदले उल्टा सवाल पाकर शांजे ने कुछ देर बेयकीनी और नासमझी से आली को देखा, जो जवाब का मुंतजिर था। शांजे इतनी बेवकूफ भी ना थी कि इस सीधे सवाल को समझ ना पाती। मुझे कैसे आएगी भला? मैं नजूमी थोड़ी हूँ और मुझे जाननी भी नहीं। शांजे ने लहजे में मकदूर भर लापरवाही मिलाए सर झटका
اور علی منہ بسور کر اس آفت کو دیکھ کر رہ گیا جو اس کے جال میں آنا تو دور پاس بھی نہ بھٹک رہی تھی۔ اگر میرا دل کچھ اور ہوتا تو تم میں سانس پھونک کر تمہاری سانسوں سے زندگی کشید کرتی ہوا ہوتا، وہ ہوا جو اظہار محبت کے طور پر تمہیں دیکھنے والی آنکھوں کی پلکوں کی نرمی سے سہلا کر انہیں خاص، بہت خاص ہونے کا احساس